Okay, settled, everybody. So, a very good evening. Good evening. Okay. So, I hope there are a lot of people who are coming for the first time. So, let us introduce what Suraj Startup is and what is the event all about. Okay. So, Suraj Startup is a community which is helping startups in Surat. Okay, since last 10 months. So, what we have been doing is since last 10 months we are doing events on a constant basis. We have done a large scale event which was called Surat Pitch Fest, Startup Pitch Fest, in which we called 10 startups and we also awarded 3 startups with a cash prize of rupees 20,000, 50,000, and so forth. Okay. Now we after that event we are doing events every week, almost every week. Okay. So what does a fortnight meetup mean is a concept which is formed in such a way that every 15 days we promise to do a event. Cool. So this is the I think the sixth fortnight meetup which we are doing. Okay. And the topic for the event we will look after. Okay. So what the concept is all about is कि the entire agenda is fixed. Okay. So मेरा introduction है ये है वो है agenda fixed है. सिर्फ उसका जो speaker है और जो content है वो different है. बाकी the entire agenda is fixed. Okay. So once we go through the day, we will know more about the agenda and the things. Okay. So every time we start with this slide. Okay. So the people who are regular to the event will raise their hands. I know, and people who are coming for the first time will not. Okay. So you must have been searching on Google and वहाँ पे button आता है I am feeling lucky. Right? Agree? Everybody? ठीक है. So this is the question to all of you that how many of you are feeling lucky to be here? And those who are feeling lucky should raise their hands. Okay. So you are not? Okay. So the only point of doing this exercise is ki you need to be sure of you being so lucky that you are sitting here, you are attending a session. People there sitting outside or sitting in their offices are not attending this event. Okay. So plus you are sitting in an AC office. Okay. Plus you have a chair. You are not sitting down. Plus you have the polo. You have the water bottle. Plus you will be getting an ice cream today. Okay. So these are all for free. Okay. And then you are attending a session as well. So you should feel lucky and you should raise your hand so highly that you are feeling lucky. Good. So moving forward, I think we don't have a speaker as of now. So this is the agenda for the day. Uh, so I was talking about the agenda. Okay. So these all things are the same in every event we do. Okay. So these 2 points. Okay. This is the thing which differs every event. Okay. So basics of accounting and financial reporting for startups that would be taken by CA Mehulzar, and third is Vibrant Gujarat Startup Summit guidelines, and the rest of the things we cover every event. Okay. But only the thing is the content is different. Cool. So I think the speaker is still not available, so what we will do is we will start with the introduction. So in introduction, what we do is you have to introduce yourself. If you have a startup, you have to speak about your startup as well. Okay, and we would love if you speak about it more. Okay, because this is a startup event, this is a startup community, and we would love to if you speak about your startup. So this is how we introduce ourselves. My name is Anand and I am the team leader in Abjex. Abjex is the company which has initiated Surat Startup. Okay. So hello, we are Surat Startup. We are here because we love helping startups in Surat, and you can find us at Surat Startup. So anybody can start. I would appreciate if somebody takes the lead. So we start. Yes, Dev. I'm Sam Salia. I'm a founder of Fair Bonamay. Basically, we are dealing with American diamond jewelry, and I would like to grow this business on online. Right now, we are selling in all over Gujarat. Sir. Hello, myself, Nakib Shah. I'm running a software development company, running software development and mobile application development. I'm Dhaval Bagalia from insurance topic. Last 20 years I'm in insurance field. Hi, myself Agla Kishore. I am practicing cost accounting from Silicon and I want to grow my practice via digital environment. Myself, Ketan Bandere. I am an exporter of fresh vegetables and fruits. I want to uh, grow my business so our entire farmer, our country's entire farmer can export their products to all over the world because
right now 42 42% of fruits and vegetables are wasted due to uh, not consumption. Myself, Rakesh Pipalia, we started Tetra Healthcare Private Limited, intends to export the pharma medicine to the non-regulated countries, just on nutrition. If you have started with that company. Hi, I'm Krishna Mukkal. I have a startup called Stimulate. We do event management. I'm from Bangalore. I studied there and moved back here, and I'm planning on opening another startup here which does event management. So nothing apart from that. No, I just finished my 12th right now. Oh, So I do freelance event management right now, but I don't have a team. So I'm planning to make a team and start doing it here. Hello, my name is Akshay Sawani. I have completed BE Civil and presently I joined the construction site and I do something new based on new idea. please, please. Hello, my name is Sumit Balda. I work at construction building construction. Okay. So you have your own firm, you are working there. I own from labor contract. I am Kunal Savani. I am a labor contractor. We are doing 2 IRS building in our West area. Okay. And we are looking for startups, something new. So you want to fund startup or you are No, you are looking for we have a team. okay. So you are forming a new startup. Yeah. Great. ऑटोमोबाइल के शुरू में मतलब दूसरे चीज में स्टार्ट करने का मतलब पूरा प्लान करना है. Startup field में try किया. मैंने भी ये हुआ. We are doing the import export. मेरा नाम जितेंद्र और मैं NBFC है, Irwin Finance Private Limited. वहाँ पे जो रिलेशन Myself, Vipul Parekh, I'm the founder of Remote Waves. Remote Waves is an online tech support website. So if you have any software problems with your laptops or desktops, you can visit remotewaves.com and it will be solved in 15 minutes. It's a new startup, so I would like every one of you to please check it out. Hello, myself, Neha Jain. I'm a unit manager. I'm service provider all over Gujarat. I'm just looking forward to grow my business. Hello everyone, I'm Kumari Parekh. I'm planning for a startup in the field of nutrition. Hello, myself Neerav. I am a developer and Asino management in IBS. myself Mani Patel. I am a developer. Hello, I am Ravi Samaria. I pursued my MBA in finance. Right now I'm into real estate. Hello, myself Samir Sir. I'm doing accounting job. Hopefully here to know. So, Krishna here from Association for Founder of West Lemon. Good evening, everyone. Myself Jignesh Navala. I am a CA and working with the revenue. Hello everyone, this is Kipul Patel and a Chartered Investor. I am Sahib. I am a CA. Myself Jaideep Media. I am engineering student at Security College. Hello, I am Nayan Puralia. I am trying to make social media. Just You are trying to make social media. Okay, you were the person setting right here last year. So nobody has told the reason of why you are here. Okay. So today's event, everybody would have known the topic, right? सबको पता है ऐसे यहाँ ऐसे कोई नहीं आया, ठीक है? So what do you expect from the event? कोई भी randomly कोई ऐसा नहीं कि सबको बोलना है. What do you expect from the event? Yes. How startups companies are accounting in how startup companies take जो स्टार्टअप कंपनीज है उसका अकाउंटिंग कैसे होता है उसके बारे में जानने के लिए. सभी ने बुक में लिखते थे वैसे हो जाता है. नहीं उसका कुछ तो होता हाँ होगा. मजा कर रहा हूँ. Anybody else? Yes. What are the legal and tax requirements What are the legal and tax requirements for a startup? for a startup? Okay. Anybody else? The type of support the government gives you if you're starting a startup. Okay, this is the type of cool. Anybody else? Payroll management and online billing for the So what do you mean by payroll? Payroll means entry of the things which you are purchasing, the I don't know
know exactly. It's like feeling I something. know that is why I asked you what is the minimum. Anybody else? So what do you expect from the event? Anybody else? Yes. Basically, I have some experience like whenever we do accounting in our office, so it's not proper. So final figure आना चाहिए वो नहीं आता. So we are looking for new some technique with how we manage it very differently and very precisely. Okay, so there are 4 to 5 points which I have taken from it कि मैनेजमेंट कैसे करना है फंड्स का, स्टार्टअप्स कैसे मैनेज करते हैं फंड्स को, what are the government policies that can help startups and something related to payroll, right? Okay. इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करें. Okay, balance sheet से इन्वेस्टर कैन अट्रैक्ट करें. Okay, so moving on, we move on to the speakers part, the topic of the day. So we have named it as not as tough as maths. Okay, so the next session would be not as tough as maths. So I would request CA Mehul Shah sir to please come and address the topic. I would request please. So Mehul sir is the one who owns this office. Okay, so you can clap more and. The water bottle, the polo, and the ice cream would be gifted by Mehul. Okay, clap more. The broader topic should have been like finance for non-finance manager, because as an startup, the if you move towards the hierarchy of any startup, जो भी लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पे जिनकी मे बी सैलरी में रेंज अराउंड मोर देन 10 lakh 15 lakh, those are maybe from non-financial background. So there are a lot of startups and there are a lot of corporates who are holding sessions of this kind. Finance सिखाया जाए non-financial managers को. But yes, as we know we have limitation of time, so we will be narrowing down to a topic where we will be dealing more towards accounting and financial reporting. And maybe decision making part या ratio analysis जो कहते हैं that will be taken somewhere like कभी और भी लेंगे. Yeah, I have a question. I will give it like expectation और कौन से questions I wrote down few points. Balance sheet से attract कैसे करें उसके पहले yes. Can I know the composition, like how many of your conversion because balance sheet is a profit and loss account is because that is some sort of knowledge of account here, and how many of you are totally foreign to this words even called balance sheet and P&L and okay. देखिए मैं थोड़ा बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि थोड़ा स्क्रैच से स्टार्ट करता है. तो जनरली आई थिंक व्हाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड इज बिकॉज everything in business is ultimately linked with finance. आज मैं नीचे जाके पानी पूरी भी खाऊंगा तो मुझे एक्चुअली एंट्री पास करनी चाहिए, भले मैं शायद नहीं करते, आपके अकाउंटेंट ध्यान करते हो तो आपको पता नहीं होगा, बट ईच एंड एवरी expense has to be accounted. कहीं ना कहीं को एंट्री होनी चाहिए. If you lose a customer, you lose a revenue, it impacts your profit and loss account. अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, मान लो सिर्फ आपके कस्टमर को ज्यादा टाइम दे रहे हो पैसे पे करने के लिए, आई मेक अ सेल एंड मान लो 100 रुपये का सेल किया और मैं सामने वालों को कहता हूँ कि मुझे 60 डेज के बदले 90 डेज में पेमेंट करना, देन ऑल्सो अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर फाइनेंस. भले कोई ट्रांजैक्शन एसेस नहीं, मुझे टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, बट इट मेजरली अफेक्ट्स योर फाइनेंस बिकॉज दैट पीरियड ऑफ क्रेडिट टेक्स केयर ऑफ द फैक्ट कि मैं मुझे बैंक से शायद वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़े, तो शायद सामने वाला जल्दी पेमेंट कर देगा तो मुझे शायद लोन नहीं भी लेना. सो लॉट ऑफ डेलिबरेशन, लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. मेजरली अगर आउटपुट बात करें अकाउंट्स की, then I would say this balance sheet and profit and loss account. Balance sheet would show your company's financial health. Balance sheet is always as on a date. Yeah, I say balance sheet as on 31st March 2016. So that will show the financial position of my company as on this date. Okay. And profit and loss account is something which is for a period. मैं कहूँगा कि मेरा प्रॉफिट है 1 अप्रैल से लेकर, I know कि जो लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड उनके लिए काफी बेसिक लगेगा, but still my challenge is to explain some theories of accounts in a very lucid manner. So like profit and loss account is always for a period. मैं कहता हूँ 1 अप्रैल
2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो दिस आर द मेजर आउटपुट आई वुड से फ्रॉम अकाउंटिंग कि मैं पूरे साल जो भी डाटा एंट्री होगा उसका ये आउटपुट निकलेगा। So to be more concise, I would divided my some of my present like over present into some say 10 things about financial accounting which startup founders should understand. The first thing is what are the complete set of financial statements. अगर मैं income tax की बात करूँ, सर्विस टैक्स वालों की बात करूँ, तो ultimately मेरे से वो लोग क्या मांगेंगे? So that would be a complete set of your financial statement which comprise of your balance sheet. It would comprise of your profit and loss account. बिजनेस होता है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, प्रोफेशन होता है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, मोर और लेस इज द सेम। एंड इन फ्यू ऑफ द केसेस और रिसेंटली गवर्नमेंट रिक्वायर्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो, जिसमें से आपका पूरे साल का कैश फ्लो कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो मोस्टली इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे रिक्वायर नाउ। So balance sheet shows the financial position as on the last period of the accounting year, while profit and loss account would show the affairs of the company over a period. Just to end this is how this would help to understand the business. Let us take a very simple example. So the basic rule of accounts is my asset is always equal to my liability plus capital. Basic rule of account. So like business या startup जैसे चालू होता है, so this is the balance sheet of the first day of my business, जहाँ पे मैंने मेरी सेविंग अकाउंट में से कंपनी के अकाउंट में से 100 रुपए सॉरी कैश है, तो मैंने कंपनी स्टार्ट की आई इंट्रोड्यूस 100 रुपीज कैश। मे बी इट इज अ बैंक, तो सबसे पहले मैं एलएलपी पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी चालू करूंगा उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा और मेरी सेविंग अकाउंट में से उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करूंगा। तो दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री इनटू माय बिजनेस। ये बैंक है और सामने कैपिटल है। So this is the asset side, this is the liability side, which will also comprise of equity. If I talk about asset, जिन लोगों से मुझे पैसा लेने हैं या मैंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, that would appear here. If I bought a machinery, पर machinery यहाँ पे मेरे पास कैश पड़ा है, मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं, मेरे कस्टमर्स के नाम है, वो सब asset side पे आएंगे। जिनको मुझे पेमेंट करना है वो liability side पे आएंगे। जैसे कि मेरे सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, जिनसे मैंने माल लिया हुआ और उनको पेमेंट नहीं किया, that would appear on the liability side. Same way, if I've taken some funding from someone, maybe some unsecured loan to relate to से पैसे लिए, यहाँ पे आएंगे। So ultimately, balance sheet will show me as of now मैं इन लोगों से पैसे ले सकता हूँ, मशीनरी बेचूंगा तो इतने पैसे आएंगे, कस्टमर से पैसे लूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मेरे पास ऑलरेडी कैश है, दिस आर माय एसेट। तो आज अगर मैं बिजनेस बंद कर देता हूँ सिंपली, तो यहाँ से मुझे पैसे लेने और इनको देने, कि आज की तारीख में अगर मैं बिजनेस बंद करता हूँ तो इन सबसे पैसे वसूल करना है और इन सबको पैसे चुकाना। इवन मैंने जो स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्ट कर मेरा खुद का कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, देयर विल आल्सो अपीयरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड। मतलब सोचो व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस, एनी बिजनेस, एज अ पर्सन मैंने मेरी कंपनी को पैसे दिए, तो अगर कंपनी की बैलेंस शीट है तो कंपनी के बैलेंस शीट के लिए भी मैं एक तरीके से क्रेडिटर जैसा ही हूँ, क्योंकि कंपनी हैज टू पे मी ऑफ व्हेन बिजनेस इज ओवर, कंपनी हैज टू गिव me my money back, so even my capital is appearing here. So this capital also denotes कि business, मेरा business एक अलग entity है, मैं खुद एज अ पर्सन एक अलग entity हूँ और मेरे business को मुझे वापस पे करना है जितने पैसे उसने स्टार्टिंग में लिए हैं। So this capital denotes how much business has to pay me. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, just for you to understand कि how every time magically asset और liability and equity हमेशा सेम रहती है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी है ना, बिकॉज़ वन और टू स्लाइड्स प्योरली अकाउंट पे कंसंट्रेट करते हैं, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग पार्ट, या फिर आप दूसरे दिन कैसे बुक्स मेंटेन करनी चाहिए। तो लाइक यू नो बिजनेस और ओके, और कौन से डाइवर्स बिजनेस यहाँ पे Event management. import export, like एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, maybe can move chapter wise. So cash introduce किया, capital. So for a business, I have an asset called cash on this date, और business को पता है कि कहीं ना कहीं उसको 100 रुपए वापस मुझे चुकाना है।
So now the first transaction I do is कि मैंने ये कैश से सपोज मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेट अस नॉट गो इनटू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कोई भी एक कमोडिटी से मेरा काम ये है कि मैं एक पेन खरीदता हूँ और पेन बेचता हूँ, या ग्रे खरीदता हूँ ग्रे बेचता हूँ, सो व्हाट एवर ट्रेडिंग एग्जाम्पल प्रेजेंटेड. So when I make a purchase, से मैंने एक पेन खरीदी 100 रुपये में, बिल जिसका है वो मेरा क्रेडिटर हो गया, सप्लायर होगा, आई हैव टू पे हिम. एट प्रेजेंट आई हैव नॉट पेड हिम बिकॉज इन अ मार्केट देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिट पीरियड कि तुरंत मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ता. आई हैव सम स्टॉक हियर, आई हैव सम क्रेडिटर हियर, सो अगेन बैलेंस इज टेलिंग. अब ये मान लो 30 दिन में मेरे से पेमेंट मांगेगा, तो ये कैश मैं उसको दे दूंगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा. So again the next transaction, this transaction I have purchased some stock worth 100 rupees on credit. So again now my balance sheet I have something called stock, I have something called capital. अब मैं इसको सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मैं खुद ही सेल्समैन हूँ, खुद ही सीईओ सब कुछ मैं हूँ. तो एक कस्टमर मुझे मिला, 110 रुपये में एक पेन खरीदी. So I make a sale. Now I have the customer on the asset side. स्टॉक चला गया तो चला गया, वो निकल जाएगा. डेटर्स मींस का कस्टमर के एसेट है, इससे मुझे 110 रुपये वसूल करना है, और जो भी डिफरेंस है मेरा दैट इज माय प्रॉफिट, बिकॉज मैं 100 रुपये की चीज खरीदी थी 110 रुपये में बेची है. सो अगेन दिस वुड बी टेलिंग. कस्टमर को मैं वापस से बोलूँगा 60 डेज में मुझे पेमेंट कर. जब कस्टमर यूज मी पेमेंट ऑफ कैश 110 रुपीज, तो डेटर्स चला जाएगा और कैश आ जाएगा. If you run through this transaction are very simple. बिजनेस चालू किया, कैश इंट्रोड्यूस किया, आई परचेज स्टॉक, तो जो भी मेरी एसेट बढ़ी तो यहाँ पे है, जो भी मेरी लायबिलिटी बढ़ी तो यहाँ पे है, तो क्रेडिटर है. सपोज इन दिस एग्जांपल द प्रॉब्लम इन बिजनेस लाइफ कि मुझे पता है कि मैं ये चीज 100 की 110 में बेच सकता हूँ. आई ऑल्सो हैव अ डिमांड कि अगर मेरे पास 100 के बदले 200 रुपये होते ना, तो शायद मैं 2 सेल्स कर सकता था. The problem is that I have a limited capital. मेरे पास खुद के पास सेविंग अकाउंट बहुत कम पैसे हैं, इसलिए I am not able to sell it to 2%. So that is where the funding lies. कि मुझे पता है कि आज मैं अगर लोन लूंगा तो लोन लेने पे मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 6 रुपया देना है, लेकिन वो लोन के पैसों से मैं जो एक पेन बेच रहा था उसमें 2 पेन बेचूंगा. दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी इज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक स्केलेबिलिटी एंड फाइनेंस विद अकाउंट. तो मान लो ये स्टेज पे मैं लोन भी ले लेता हूँ, तो मैंने टेक अ लोन, व्हाट विल हैपन, आई हैव टू रीपे देम. So if I am taking a loan from HDFC, so HDFC will be on the liability side. So I have to repay HDFC. HDFC is going to give me some cash, maybe cash में लोन मांग लेते हैं, या बैंक में मेरे सेविंग अकाउंट में लोन देगा, तो यहाँ पे बैंक या कैश आ जाएगी. So again this will be direct. सेम चीज ये लोन के पैसों से भी मैं स्टॉक खरीदूंगा, तो 100 के बदले 200 हो जाएगा. बट अल्टीमेटली एवरीथिंग each transaction will flow in a manner कि always my assets and the liabilities are equal. When you start a business, the first thing which you are going to decide is whether you are going to maintain your accounts on a cash basis or mercantile basis. You have both the options when you are starting a business as a sole proprietorship. जैसे इंश्योरेंस हो या इवेंट मैनेजमेंट हो, you maybe it is more feasible to prepare your accounts on a sole proprietorship basis. या maybe if you have a partnership firm or an LLP, सब में cash basis और मर्केंटाइल दोनों पॉसिबल है. मर्केंटाइल इज व्हेन आई रिकॉर्ड माय इनकम, आई बुक माय एक्सपेंस व्हेन यू रेज द बिल. मतलब आज 31 मार्च है और मैंने कुछ परचेज किया और सामने वाला मुझे परचेज का बिल दे रहा है, तो मर्केंटाइल सिस्टम क्या कहते हैं कि जब बिल मिला तब मुझे रिकॉर्ड करना है. मान लो 31 मार्च को मैंने सेल किया और सेल किया तो मुझे सामने वाले को बिल देना पड़ेगा. So though I have not received payment from my customer and though I have not made a payment to my supplier, still mercantile system में मुझे इनकम भी दिखानी पड़ेगी और एक्सपेंस भी दिखाना पड़ेगा. Whereas in cash basis is very simple. जब पैसा आया तब आपकी इनकम, जब पैसा गया तब आपकी एक्सपेंस. से फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्लाइंट का रिटर्न करा था 10 साल पहले, मोस्ट ऑफ द सीएस फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो किसी का रिटर्न करा था मैं 10 साल पहले, बिल भी उसे रेज कर दिया 10 साल पहले, उसका पैसा सपोज आज आ रहा है तो मैं इनकम आज दिखाऊँ, या फिर मैं
से आज मैं किसी को बिल रेस कर रहा हूँ, उसका पैसा 5 साल के बाद आ रहा है, तो मेरे लिए इनकम 5 साल के बाद होगी, आज नहीं होगी, मेरे बिल में आज बना रहा हूँ. दैट इज कैश बेसिस एंड मर्केंटाइल इज. So cash basis से record income when you get paid whether by cash, credit card, check. Cash by cash here I mean anything. Payment आना चाहिए, मतलब बैंक में payment आया, that is a metaphor of cash. So whether I'm getting payment by cash, credit card, check, anything, सिर्फ bill raise करूँगा तब मुझे income record नहीं करनी है. Record expense only when you pay for them and not when you receive invoice. So one method is cash basis, another is accrual basis, that is record your income when you sell and issue your bill. Even if you don't receive the money here, customer से पैसा नहीं है, फिर भी आपको सेल रिकॉर्ड कर देना है. Record your expenses when you physically receive a goods or services along with invoice, even if you haven't paid for it. तो आगे के एग्जांपल में तो यहाँ पे सर हम एक ही ट्रांजैक्शन समझा, इसलिए प्रॉफिट यहाँ पे. नाउ एक्चुअली ऐसे काफी सारे ट्रांजैक्शन होंगे. सो व्हाट आई डू, ये जो प्रॉफिट 10 रुपये कैलकुलेट कर रहा हूँ उसके लिए अलग से एक वर्किंग बना लेता हूँ, जहाँ पे मैं सभी इनकम सभी एक्सपेंस को जॉट डाउन करूँगा और अल्टीमेटली जितना प्रॉफिट आएगा वो मेरी बैलेंस शीट में यहाँ पे ऐड करके कैपिटल मेरा बढ़ेगा. लाइक आई हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज, पूरे साल बिजनेस करने से जितना भी प्रॉफिट होता है दैट इज एडेड अल्टीमेटली एट द लास्ट डेट ऑफ माय बैलेंस शीट व्हिच आई वुड से एमालगमेट्स इनटू माय कैपिटल, और मेरा नेक्स्ट डेट कैपिटल होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस करंट डेट का प्रॉफिट. तो ये जो प्रॉफिट का लिखने का तरीका है वही उसी को अलग करके हम पीएनएल बनाते हैं. तो दिस इज हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डन एंड बैलेंस शीट इज डन. पीएनएल में से एक ही एंट्री होगी जो मेरे यहाँ पे कैपिटल में ऐड होगी, मैं अल्टीमेटली आई फाइनलाइज माय बैलेंस. So first of all, as I said, we are moving towards decision making point. So first of all, you need to decide whether cash basis of accounting is proper for you or mercantile, because afterwards when you tend to change this method of accounting, 100% income tax वाले आपका केस स्क्रूटिनी में लेंगे ही लेंगे. So you need to decide from first, और इनकम टैक्स भी आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे दिखाना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल बिल बना दोगे, कस्टमर आपको सपोज पैसा नहीं देने वाले, तो आपको अपने पॉकेट में से भी कहीं से पैसे अरेंज करके टैक्स तो भरना पड़ेगा. You cannot say कि सर लेटर उसने पैसे ही नहीं दिए, मैं टैक्स कहाँ से भरूं. So you need to analyze both this method depending on the nature of business. I would say insurance business के लिए या फिर इवेंट मैनेजमेंट के लिए और any sort of professional advocates, ये उनके लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छा है. और जो एक्चुअली ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मर्केंटाइल बेसिस अच्छा है. बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट यू आल्सो गेट टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर. कैश बेसिस में आपको खुद का एग्जैक्ट पिक्चर पता नहीं चलेगा. जब पैसा आ रहा है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि मर्केंटाइल बेसिस में आपकी बैलेंस शीट में आपके कस्टमर के नाम दिखेंगे, आपको पता चलेगा कि मुझे ये कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं. तो आईटी कंपनी आई फील दोज हु आर वर्किंग मोर ऑन अ पर आवर बेसिस, सोल प्रोप्राइटर जैसे लोग हैं, उनके लिए कैश बेसिस अच्छा है. अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग ऑन प्रोडक्ट बेसिस पे कोई जेनेरिक प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में बेच, उनके लिए मर्केंटाइल सिस्टम नहीं है. बट कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी बिजनेस अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो, then you compulsorily have to follow mercantile because companies act आपको मैंडेटरी कहता है कि आपको एक्चुअल सिस्टम मेंटेन करना है. तो इंश्योरेंस बिजनेस का प्रोफेशन होगा, लेकिन आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो उसके लिए देन कंपल्सरी यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एक्चुअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग. कैश बेसिस टैक्सेस में थोड़ा अच्छा रहता है. मे बी डॉक्टर्स आल्सो, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. कंसल्टेशन फी मिली तब उसको इनकम बुक करो. नेक्स्ट स्टेप इज एज मैं अंडरस्टैंड कि हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा उसकी एक एंट्री होगी. सो मेजरली काफ़ी स्टार्टअप्स कहते हैं कि सर अभी तो हमने चालू भी नहीं किया तो भी अकाउंटेंट में खर्चा क्यों करें. तो द क्वेश्चन इज कि आप पहले प्रॉफिट तो करें फिर और कोई एजेंसी को हायर करें. तो व्हाट इज द राइट टाइम टू अपॉइंट एन अकाउंटेंट. So accounting is first of all you need to understand is not important only from the legal or taxation point of view, but also it is important because you as a business owner needs to be aware of the overall health of your business on a real time basis. पहले बात कुछ और थी कि there were more transaction of unaccounted money, black money का ज़्यादा रोल था. आज मैं देखूँ तो जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, पर्टिकुलर व्हेन वी आर हैविंग अ सेशन ऑन स्टार्टअप्स जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं दे आर रेडी टू शो एवरीथिंग अकाउंटेड. क्योंकि स्टार्टअप्स में जो फाउंडर है वो डायनेमिक है, उनका मानना ये है कि टैक्स कैसे बचाया जाए उसके बारे में सोचे. उससे उतना टाइम अगर हम अपने बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो उतना शायद रेवेन्यू जनरेट कर देंगे. आज अगर एक बिजनेसमैन 15-20 घंटे ये सोचे कि मैं
ब्लैक में कैसे पैसे लूँ और इसको कैसे बचाऊँ, इसको कैसे कहीं रूट करूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं जाए, उसमें जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना टाइम आप इनोवेशन पे इन्वेस्ट करोगे, देन आई थिंक यू गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल जाएगा और आपकी भी रेवेन्यू बढ़ेगी. सो इवन एज अ सीए वी हैव बीन प्रमोटिंग स्टार्टअप टू शो एवरीथिंग ऑन अकाउंट, कि आपको तो आपके बिजनेस का एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगा. अगर आप ही मान लो आज मेरे पास 3 फी आई और मैं वो फी को दिखा ही नहीं रहा, इनकम ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इफ आई डोंट वांट टू पे टैक्स मैं बुक्स में एंट्री पास नहीं कर सकता. मैं पास एंट्री में बुक्स से तो अल्टीमेटली प्रॉफिट शो होगा और उस पर टैक्स भरना ही पड़ेगा. तो टैक्स नहीं भरने के लिए मैं इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा, और इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझे ही मेरे बिजनेस का क्लियर पिक्चर पता नहीं चलेगा. एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू आर अप्रोचिंग say any VC or angels, you are required to at least give your accounts till date. उस टाइम पे आई डोंट थिंक एनी इन्वेस्टर वुड बी कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग कि मैंने इतना प्रॉफिट ब्लैक में भी कमाया, इतना व्हाइट में कमाया. रादर या आप कहोगे भी तो उसको ड्यू कंसिडरेशन नहीं देंगे व्हेन दे आर वैल्यूइंग द बिजनेस. सो आई वुड ऑलवेज एनकरेज कि हो सके मतलब 100% ही आपको अकाउंट रखने चाहिए. एंड एज फार एज अपॉइंटिंग एन अकाउंटेंट इज कंसर्न, I would rather say monthly basis पे कोई, if you get someone who can do something on an outsourcing basis, तो monthly basis पे month में एक बार आए. And the source document to start accounting would be a bank statement. Why bank statement is because बैंक वाले आपने जितने business में transaction में भी nature की आपने check से किए होंगे suppose. बैंक की भी 3 टाइप की ऑडिट होती है. Suppose if I am having an account in ICICI Bank, ICICI में एक इंटरनल ऑडिटर या काउंटर ऑडिटर भी होगा जो डेली बेसिस पे उसकी ऑडिट करता है. देन दे हैव समथिंग कॉल्ड इंस्पेक्शन फॉर एवरी 3 मंथ्स, जहाँ पे उनके ऊपर जो रीजनल ब्रांच होगी वो लोग ऑडिटर्स आएंगे, वो लोग ऑडिट करेंगे. और साल खत्म होने के बाद अगेन दे हैव सम कंप्लायंस ऑडिट, और उसके बाद सीधा आरबीआई तो उन्होंने जो ऑडिट किया है दैट मींस योर बैंक स्टेटमेंट वुड बी प्रॉपर. ऑलमोस्ट ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि आपने कोई चेक लिखा है और बैंक स्टेटमेंट अपीयर नहीं हो रहा, कि आपको कोई इनकम टैक्स से मिली है तो बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट नहीं है. बहुत कम चांसेस बिकॉज ऑलरेडी इट हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. तो अकाउंटेंट को बस उतना बोलना है कि बैंक में जो ट्रांजैक्शन है उसको बेस फाइल हो, उसके बेस पर प्रिपेयर किया अकाउंट. तो ना इफ यू फील कंफ्यूज या पूरे साल में से इंश्योरेंस बिजनेस और इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस रेगुलर बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं भी हो रहा है, देन एटलीस्ट यू शुड डू दैट बाय 31 मार्च खत्म होने के बाद टेल योर अकाउंटेंट दिस इज माय बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट के सपोर्टिंगली जो भी आपका वाउचर्स है वो आप उनको तो टेल देम टू प्रिंट आउट. सो दैट इज आल्सो गुड मेथड वेयर बाय इट इज अ काइंड ऑफ असाइनमेंट जॉब फॉर दैट अकाउंटेंट कि बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर आपने जो वाउचर्स दिए उसके बेसिस पे प्रिपेयर अकाउंट्स का गुड सेंस. बट उसके लिए अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज अ स्टार्टअप और एज अ न्यू बिजनेस यू आर रिक्वायर्ड टू डू. जो आपका क्वेश्चन था. So it will change from business to business. I feel this 5 to 6 bullet points will take care of it. First of all, keep copies of all the sales invoices and all the cash receipts. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सामने कस्टमर आपसे बिल मांगे तो इश्यू कर रहा है. Whatever amount maybe you are going to deposit in bank in future, whatever check you are going to collect, बिल तो इश्यू करना ही है. सेल बिल इश्यू होना चाहिए, भले वो नहीं ले जा रहा तो आपकी फाइल में रखो. So one file will comprise of all the sale bill, it should be serially numbered. Another file which will comprise of all the purchase invoice. So whenever you want to claim, see, income tax is going to charge your tax on your profit. Profit will be your income minus your expenses. अब वो expenses income tax department तभी approve करेगी when you have some voucher for it. So whatever expense, like direct purchase होगा तो परचेज से मैं ग्रे बना रहा हूँ, यान में से यान का यान जो मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया. सो मे बी द परचेज इनवॉइस ऑफ द वेंडर. इसके अलावा मैं जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर रहा हूँ, पेट्रोल है, कन्वेंस, इफ आई वांट टू रिड्यूस माय टैक्स देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी खर्चा बिजनेस के लिए कर रहा हो उसका बिल आपके पास होना चाहिए. सो मेक श्योर दैट ऑल द परचेज इनवॉइस आर देयर. क्रिएट अ पेरोल फाइल सॉर्टेड बाय पेरोल डेट एंड बैंक स्टेटमेंट फाइल सॉर्टेड बाय मंथ. कि एक फाइल से फ्लो बनाओ जिसमें हर एक मंथ का बैंक स्टेटमेंट बने. वी जनरली हैव अ हैबिट कि अप्रैल खत्म हुआ तो उसका बैंक स्टेटमेंट, मान लो आपका 3 बैंक है, 3 बैंक का बैंक स्टेटमेंट, फिर क्लैप लगा दिया मई, वापस मई के 3 स्टेटमेंट जून. सो मंथ वाइज योर बैंक स्टेटमेंट शुड सॉर्टेड आउट. अगर आप कम वेंडर्स के साथ डील करते हो, देन इट इज या एक लिमिटेड वेंडर्स के साथ डील करते हो तो वेंडर्स की फाइल हम जनरली अल्फाबेटिकली प्रेफर करते हैं कि ए टू एक्स ये फाइल में आई से लेके
say OES file or maybe that in the next file. So vendors file possibly then you should make it alphabetically. Maybe you can have all a separate file for all the fixed asset which you are purchasing. By fixed asset I mean furniture, AC, projector, जो भी capital expenditure आप करते हो उसके अलग से file होनी चाहिए because as far as income tax is concerned you get some notional deduction for this. Suppose if I purchase a laptop of 50,000, मुझे income tax depreciation करके term होती है, so पूरा दिन पैसा रहता है, so there is a notional कि actually मेरे pocket में से कुछ पैसे नहीं जा रहे, ultimately it's my fixed asset, but if I am using this asset for 3 years तो मुझे हर साल 15,000 मेरे income tax में deduction करने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपके लिए ये फाइल और ये डेट सब important है, so maybe fixed asset register कहते हैं उसे, so you require a fixed asset register separately. Nowadays there are a lot of accounting systems which are taking care of this कि अगर आपको physically सब कुछ maintain नहीं करना, then I think in recent years QuickBooks है, FreshBooks है, there are even some startups in Surat, Sikrant, 4 letters करके, so these softwares have an embedded feature within them कि जब भी आप कोई accounting entry pass करने के लिए कोई data entry करोगे, it will ask you as an attachment. तो आपको वो केस में आपको ये सब फिजिकली कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ेगा. So if I record an entry for purchase, तो मुझे वेंडर का भी वहीं पे ऑनलाइन अपलोड कर देना है. So and everything will be hosted on a cloud or a server, so you don't have to maintain a physical file. Physically file के लिए these are the things which you require. और ये सेम चीज आपको आपके ऑडिटर जब आप बुक्स क्लोज करोगे और ऑडिट के बुलाओ ये सेम चीज मांगेंगे. As far as expenses are concerned, जो expenses आपने चेक से पे की उसके अलग फाइल होनी चाहिए और जो कैश में पेमेंट की उसके अलग से फाइल होनी चाहिए. So that would help the auditor to do the process faster. If you have some questions, then we'll be coming up with this slide later on. This you can see. So then in any business, cash is a very sensitive. बाकी देखो बैंक में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना उसमें मुझे इंटरनल कंट्रोल इसको सोचना नहीं पड़ेगा. कैश में मुझे सोचना पड़ेगा कि आज मैं मेरे सेल्समैन को 10,000 कैश देता हूँ, उसका हिसाब मुझे ही मांगना पड़ेगा. या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, मान लो मेरे ऑफिस में एक जन को रखा है कि चाय हो कॉफी हो तो वो सबके पैसे को दे दे, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल बहुत जरूरी है. तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक महीने बाद मैं उसको पूछूं मैं तुझे 1 लाख रुपए दिए तो कहाँ गए, वो कहता है उड़ गए खत्म हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस, वो नहीं चलेगा. बट एट द सेम टाइम हर एक 5-5 10-10 रुपए के लिए मैं एक वाउचर मांगू वो भी ठीक नहीं है. So generally every officer system of maintain a petty cash book. एक होता है मेजर मेन कैश बुक, तो उसके अंदर मान लो एक पर्सन को मैंने बोला कि तुझे मैं 5,000 रखने के लिए देता हूँ और मुझे महीने में हिसाब दे देना, जिसका वाउचर मिलता है उसका ठीक है, नहीं मिलता उसका हम खुद से इंटरनली कैश वाउचर बना देंगे. So that is petty cash. So as an entrepreneur, as a startup, you also need to require to study the cash book. Again, this is important because cash book can never go negative. Cash is always appear on the asset side. Cash book negative गई मतलब कहीं ना कहीं आपने ब्लैक आपका कुछ ब्लैक मनी था उसमें से आपने खर्चा कर दिया. there is a postulate कि नेगेटिव जब इनकम टैक्स उतना टैक्स मांगे ले, तो वो आपको ध्यान रखना है कहीं भी नेगेटिव नहीं जाए कभी भी साल में. Again, accounts would help you to decide. Again, this is one era जहाँ पे जो नए मॉडर्न सॉफ्टवेयर आए अकाउंटिंग के वो काफी हेल्प करेंगे. In most of the software recently online launch है उसमें फीचर है कि whenever you make a sale you input the credit period there and there itself. जैसे कि मुझे ये पर्सन को 60 डेज में पैसे लेने हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने आप 60 डेज का उसको रिमाइंडर भेजेगा, फिर आप सेट करोगे 90 डेज के बाद दूसरा रिमाइंडर जाए. सो अल्टीमेटली एंड देन अल्टीमेटली यू कैन कॉन्टैक्ट एन एडवोकेट कि अभी भी ये पैसा नहीं आ रहा और फिर सच में पैसा नहीं आने वाला है, सामने वाला उठ गई है पार्टी, तो आप उसको बैड डेब्ट की तरह ट्रीट करते हो. सो एजिंग ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो and even again as per the companies act now there are some mandatory requirements कि आप आपके शेयर होल्डर को बताओगे कि आप दूसरे शेयर होल्डर्स को बैलेंस शीट अच्छी तरह कैसे प्रेजेंट करें. So even company law is making a lot of efforts कि शेयर होल्डर्स को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाए. आपके शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि आप अगर कह रहे हो कि मुझे 3 करोड़ के डिटेल्स है, मेरे 3 करोड़ कस्टमर से लेना है, तो इफ यू टेल योर शेयर होल्डर्स 3 करोड़ में से तो 2.5 करोड़ का ऐसे जिसको 10 साल से लेने ही अभी दे ही नहीं रहा. आपको आपकी कंपनी में जो इन्वेस्ट कर उनको पता चलना चाहिए कि 3 करोड़ में से 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ तो शायद पैसे रिकवर होने भी नहीं वाला. इज एज गुड एज बैड डेट, भले एंट्री पास नहीं किया लेकिन 10 साल से पैसे नहीं है तभी कहाँ आएंगे. तो इवन कंपनीज मेक्स इट मैंडेटरी टू डिवाइड योर डेटर्स इनटू 2 पार्ट्स कि आप अपने कस्टमर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो कि 3
करोड़ के कस्टमर्स है, तो उसमें से कितने कस्टमर्स 6 महीने के पहले वाले एज के हैं और कितने विद इन 6 मंथ्स वाले। So ultimately it is a articulation of all these acts, service tax, income tax, companies act, and all these acts are working for the stakeholders. हर एक एक्ट ये चाहता है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट है तो उसमें गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, सीबीडीटी तो उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाता है। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में स्टेक होल्डर होगी शेयर होल्डर। तो कंपनीज एक्ट के हर एक प्रोविजन ये एम करता है कि जो भी कंपनी में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा डूबना नहीं चाहिए, because the directors are ultimately managing the company, but it is the shareholders fund which is actually invested. So any provision you talk about company, it is aimed at the shareholders का पैसा डूबना नहीं चाहिए। So accounts is one of the, or I think major role accounts का है जिसके थ्रू हम shareholders को बताते हैं। So you know, whenever even I prepare an audit report as a CA, my audit report is never to the director. पहला वर्ड जो audit report में लिखता हूँ, it is to the shareholders. So my duty is foremost duty is towards the shareholders to say कि आपका पैसा सलामत है, ये जो डायरेक्टर को आपने अपॉइंट किया है वो पैसा बराबर रख रहे या बिजनेस बराबर मैनेज कर। So and company again is a very good concept whereby and for a startup particularly it is good because we have actual division of two people. One is executing the ideas, those are known as directors, in case of LLP those are designated partners, और shareholders जो जिसको हम कहते हैं कि जो फंड प्रोवाइड करते हैं। और जो इनिशियली जो कंपनी चालू करते हैं उनको हम प्रमोटर कहते हैं, उसमें जनरली डायरेक्टर भी होंगे और शेयर होल्डर भी होंगे। तो बाद में ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कंपनी के नॉर्मल वर्किंग में कुछ ध्यान नहीं देना चाहते, उसे इन्वेस्ट करना चाहते। फॉर एग्जांपल आई मे इवन इन्वेस्ट इन रिलायंस और टीसीएस, मुझे लगता है इनके शेयर के भाव ऊपर जाएंगे तो इन्वेस्ट करूंगा, देन अल्टीमेटली आई एम प्रोवाइडिंग फंड टू रिलायंस। नेक्स्ट 8 पॉइंट, ये सब करने के बाद if you talk about decision making as a startup, when you prepare any business plan particularly, try to divide your cost into two parts, कि variable cost कौन सा है और fixed cost कौन सा है। So if anyone, if you can give me some examples of variable cost and fixed cost. Electricity and Fixed costs are your recurring costs which happen every month, and variable costs are the ones which depend on the way, on what your output is or what, on the way your company is functioning. First of all, you need to divide between capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure are those expenditure which will give you a benefit over the years. जैसे कि ये प्रीमाइस इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी 5-6 साल चलेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब फर्नीचर की बात करो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसका तो पीएनएल में कोई एंट्री होगी नहीं, दैट इज आउट ऑफ द पर्पज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, वो खर्चे में नहीं आएगा। तो खर्चे में आपकी वही चीज आएगी जो ड्यूरिंग द पीरियड ये सैलरी में पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ, मे बी कोई परचेस है, मे बी कोई लेबरर को मैं डायमंड घिसवा रहा हूँ तो लेबरर को मैं पर कैरेट पॉलिश करने के कुछ लेबर चार्जेस दूंगा। So out of these expenses, then what in your business, what do you think are variable, what do you think are fixed? Apart from the capital expenses को छोड़ देता है। Our inventory is our Rent is fixed. So if you talk about event management, as we said, first of all decide one driver, cost driver की आपका जो बिजनेस प्लान है वो कौन सी यूनिट पे डिपेंड करता है। डायमंड है तो कैरेट इज द ड्राइवर, जितना कैरेट बढ़ाऊंगा उतना शायद वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि इतना मुझे लेबर ज्यादा अपॉइंट करने पड़ेंगे। फॉर मे बी पर इवेंट, हर एक इवेंट बढ़ने पे एक वेरिएबल कॉस्ट जो होगा एसपीसी एसोसिएटेड से हर एक इवेंट में फ्लावर का डेकोरेशन करना है तो फ्लावर जो आप परचेस कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज़ एज एंड व्हेन द इवेंट इंक्रीजेस मे बी दोस कॉस्ट विल इंक्रीज। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग से रेंट एकदम बेस्ट एग्जांपल को फिक्स हो कि मैं सेल आज मान लो 1 लाख करूँ, 2 लाख करूँ, 3 लाख करूँ, मुझे रेंट तो सेम ही भरना है। सो फिक्स्ड कॉस्ट वुड बी समथिंग which would remain constant for a particular capacity, I would say। हाँ, एक खर्च से एक कैपेसिटी में ज़्यादा बढ़ूंगा तो शायद मुझे एक के बजाय 2 गोडाउन लेने पड़ेंगे तो उसके साथ आपका रेंट बढ़ेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी पे नहीं जाता। तो ऐसा मानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग जो अगर मेरा ड्राइवर केजी है, मैं पर केजी कुछ माल बेच रहा हूँ तो हर एक पर केजी में मेरा कुछ कॉस्ट ऐसा होगा जो बढ़ेगा। आज मैं 10 केजी को 20 केजी बेचूंगा
तो उतना प्रोपोर्शनेटली मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा और फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग सेम रहेगा. तो चैलेंज इन बिजनेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू मेक श्योर दैट योर सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कम्स टू पॉजिटिव अमाउंट, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. Your sale minus all the variable costs. So what you are going to do is you are going to list out all the variable costs. First you are going to identify your unit. मेरा unit है meter. Gray बेच रहा हूँ, लोग बेच रहा हूँ. Meter is my unit. So एक मीटर ग्रे बेचने से मुझे इनकम सेल आ रहा है 20 रुपीज. पर मीटर ऑफ ग्रे प्रोसेसिंग मुझे कितना कितना खर्चा करना पड़ रहा है. से ऐसे डिवाइड इनटू 5 खर्चा, इसका टोटल होता है 15 रुपीज. तो 5 रुपीज इज माय ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है तो बिजनेस बंद कर देना ज़्यादा अच्छा. उसमें आप स्केलेबल करोगे. आज मान लो आई एम सेलिंग 5000 यूनिट्स, इफ माय ग्रॉस प्रॉफिट इज नेगेटिव. आज मैं फंड लेके वो 5000 को 10000 भी करूंगा तो मेरा शायद ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव बढ़ेगा, मैं और लॉस करूंगा. तो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लॉस आ रहा है, then maybe you can say कि because of economies of scale in future and maybe because of synergy effect and maybe मुझे ज़्यादा फंड मिलेगा तो उससे मैं मेरा कॉस्ट कम कर पाऊंगा, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो मैं लोन शायद कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता हूँ. तो वो सबसे आपका प्रॉफिट पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन आपका ग्रॉस प्रॉफिट नेगेटिव होगा तो फंड लो या कुछ भी करो, यू नीड टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट. है पहले वो सोच लो कि मैं आगे बढ़ूँ बिजनेस में, नहीं बढ़ूँ. so for that it is very much important that you divide into variable cost and fixed cost. So sale minus variable cost will be your I would say contribution या gross profit. और ये gross profit में से आपके सभी fixed खर्चे माइनस होते हैं. You arrive at your net profit. So once you arrive at a positive gross profit, then your challenge is कि मैं fixed cost को absorb कैसे करूँ. कि आज मैं गोडाउन का रेंट 20,000 भर रहा हूँ और 5,000 का सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं शायद 10,000 का सेल करूँगा या 15,000 का सेल करूँगा, so I'll be getting a profit. And your break-even point would be computed by, if you want to write down the formula, it will always be fixed cost divided by sale minus variable cost per unit. Fixed cost in numerator and divided by contribution. I also contribution का meaning है sale price minus all your variable cost which includes your purchase price, which will be per unit, because that will determine कि आप कौन से यूनिट पे जीरो से आगे बढ़ो प्रॉफिट में जाओगे. तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन है. हेलो मैं ना कोई बराबर है ना. then something else is on this way. Same presentation. Again, one very good decision as a startup which you need to make is generally you say my net profit is net profit divided by sales. My net profit ratio is percentage of profit. Net profit का मतलब मैंने fixed cost माइनस कर दिया, variable cost माइनस कर दिया, मेरा लास्ट में जो प्रॉफिट आता है वो. Now a very good scientist simply divided this into two parts. उसने कितना कहा कि net profit divided by sales is equal to net profit divided by investment into investment divided by sales. जो लोग मैथ्स समझते हैं इंजीनियरिंग में उनको समझ में आया कि कुछ किया नहीं, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय इन्वेस्टमेंट. अब he became very famous. The name of the scientist was DuPont. तो उसने इसमें नया क्या किया, उसने dividing numerator and denominator by investment. अब what try to explain this? मान लो ये जो सम है उसमें ये जो इलस्ट्रेशन है उसमें मैंने एक पेन खरीदी 100 रुपए में. पूरे साल मैंने ट्राई की पिच करने की, लोग ये पेन खरीदे अलग अलग तरीके से, और एक कस्टमर मुझे पूरे साल में मिला 31 मार्च को और मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ. सो आई से माय नेट प्रॉफिट रेशियो इन दिस केस इज net profit ratio in this case is 10%, because my original capital which I have invested in my business is 100 rupees. उसमें से मैंने पूरे साल मेहनत किया 10 रुपए कमाया. Now can I move towards a different policy whereby I sell this at 101 rupees? कि 100 रुपए की थी 101 पे बेचूंगा. So even in textile there are lot of business जो कहते हैं कि मेरा NP 8% है और वो लोग कम कमा रहे हैं और
कुछ बिजनेस में ऐसे लोग कहते हैं मेरा नेट प्रॉफिट रेशियो 1% है, फिर भी वो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। तो यू नीड टू एनालाइज दिस। दो चीज़ें यहाँ पे भी कि मैं 100 रुपये की पेन खरीदूँ और 10% मार्जिन पे बेचूँ 110 रुपये में, लेकिन वो साल में एक ही बार बिकेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 100 रुपये की पेन खरीदूँ और 101 में बेचूँ, तो तुरंत आज के आज ही बिक जाए। तो 1 अप्रैल से मैं 100 रुपये बिजनेस चालू किया, ये 100 रुपये से परचेज किया और आज ही मुझे कस्टमर मिले 101 रुपये में, 1 रुपये का प्रॉफिट आज बुक हो गया। नेक्स्ट डे 2 अप्रैल को वापस से मैंने वही पेन खरीदी, पैसे तो मेरे पास है, वापस 101 रुपीज में बेची। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, आई विल बी गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 365 रुपीज। जबकि फर्स्ट केस में मार्जिन ज्यादा है, फिर भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ सिर्फ 10 रुपये। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस, आपको ऐसी प्रोडक्ट नहीं खरीदनी है जो आपको ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देती है। आपको ऐसी प्रोडक्ट खरीदनी है जिससे आप आपका खुद का कैपिटल टर्न कर सको। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा पैसा 100 रुपये लगा रहा हूँ, टेकन लोन लगा रहा हूँ, इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट, वही 100 रुपये, लेकिन उसको मैं टर्न करते जा रहा हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट में साल में एक ही बार टर्न कर रहा था, टर्न कर रहा था 100 रुपये इन्वेस्ट किया और एक ही बार 110 रुपये मिले। दूसरे में मेरा मार्जिन कम है, बट आई एम टर्निंग माई कैपिटल 365 टाइम्स, and because of that I am actually getting a profit of 365 rupees. So that is what this thing explains. भले आप 1 रुपये का प्रॉफिट करो, लेकिन उसको 365 टाइम टर्न करो, and that is why even sales is referred to as turnover. Sales को turnover इसलिए कहता है because we want कि बिजनेस में मार्जिन कम हो लेकिन सेल्स ज्यादा। तो अल्टीमेटली वी वांट टू हैव एन एब्सोल्यूट प्रॉफिट कितना है वही मुझे देखना है, पैसे घर पे कितना आ रहा है। तो भले प्रॉफिट का मार्जिन 1% है, बट इफ आई कैन इंक्रीज, so in this case my investment is 100 rupees and my sale is, or I would say this would refer to the point कि मैं कितना टर्न कर सकता हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट को। This would refer कि एक इन्वेस्टमेंट में मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है, and ultimately that would be equal to a lesser percentage, but I would be gaining more on this. So this was one fundamental viewpoint that we can explain here. And he actually broke the asset into very different parts. So the actual ratio is something like this. To put it differently, this is the ROI, return on investment, जो shareholders expect करते हैं, that is always equal to profit divided by total investment. इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, dividing and multiplying by sales. So this would denote the percentage जो दूसरे वाले investment में कम है, 1%. But my sales is say 365 times, so actually I am multiplying my investment 365 times. So overall I will be giving more return to my shareholders. So this is one of the ratio which shareholders look at, ROI, return on the investment. This I think you can see inventory part. So ultimately अभी तक की चीज़ आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगी है, तो चिंता मत करो। सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सम गुड पॉलिसीज, जैसे कि ये सेक्शन 4480 दैट वर्क्स फॉर स्टार्टअप है, तो इसमें आपको कोई स्टार्टअप के लिए कोई रिकॉग्निशन देने की किसी की जरूरत नहीं है, यू कैन बी इन एनी बिजनेस। बट ओवरऑल इसका प्रॉफिट ओवरऑल इसका टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़। पहले लिमिट 40 लाख थी, फिर 60 लाख की, अब 1 करोड़ की, और अब ये बजट में 2 करोड़ कर दिया। अगर फाइनेंशियल 16-17 की बात करो तो 2 करोड़ से कम आपका सेल्स है, कुछ बुक्स कुछ रखने की नहीं, आराम से बिजनेस करो, कमाओ, सिर्फ हाँ उतना करने का कि 2 करोड़ पे 8% गवर्नमेंट को इनकम दिखा देगा, नॉट टैक्स, इनकम। सो इफ यू डोंट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, द इंडियन गवर्नमेंट और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज्यूम कि आपका बिजनेस में 92% का खर्चा है और 8% का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पे आप टैक्स भरो। सो इफ माय टर्नओवर इज 1 करोड़, माय प्रॉफिट इज 8 लाख, तो 8 लाख पे हार्डली 60-70,000 कुछ टैक्स आएगा। वो टैक्स में से आपको वापस आपने कुछ LIC में इन्वेस्ट किया होगा या पर्टिकुलर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सब आपको डिडक्शन मिलेगा, तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली उसका डिडक्शन मिलेगा। तो आफ्टर दैट यू गेटिंग सम डिडक्शन, फिर जो अमाउंट आता है उसके बाद 50,000 का टैक्स बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो अकाउंटेंट को फीस दो, इससे अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स करो, ज़्यादा अच्छा है। सो गो फॉर दिस सेक्शन, यू नीड नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट। इफ योर टर्नओवर इज, ये पुरानी स्लाइड है तो दिस एनहांसमेंट करो, बट यू नीड टू शो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 8%।
professionals, this was not applicable because but nature of the doctors है CA उनको costing 92% से कम आती है. So from this year onwards they have introduced this section for professionals as well. लेकिन हमें अगर books maintain नहीं करनी है तो 50% income दिखानी पड़ेगी. So for any professionals like doctors, advocates, CAs, if I don't want to maintain books of account, then I have to show profit not of 8% but of 50%. Sir, private limited company के लिए भी Again, not applicable to private limited. Only for individual, actual, and partnership also applicable. LLP? LLP is not applicable. Only startups or in general? For in general to any business. Because but there is one section जहाँ पे आपको permission लेने की जरूरत नहीं, but and software developers will be covered under professional. Because there is one specific notification in regard to that. हाँ, वही software developer अगर product बना रहा product बेच रहा then it will consider the business. या customized software बना रहा then it will be a sort of profit. So last 2 to 3 slides are mainly the compliance part. Tax slabs of it have been liberalized a lot in the last few years. पहले तो मैं 3 लाख से 2.5 लाख से ज़्यादा कमाता 30% टैक्स रेट तभी आ जाता था. Now from financial year 15, 16, 16, 17, if I am earning more than 10 lakhs, only then I am required to pay tax at the rate of 30%. So I feel 12 lakh की income पे if you manage well, you end up paying tax of only 1 lakh, which is as good as I think it will be the lowest in all over the world, almost in the top 10 countries lowest. अगर मैं actually 12 lakh की income और 1 lakh का tax होता है, so I feel should always be encouraged to pay more taxes. अगर एक दूसरे शॉर्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, देखो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर कैमरा लगा के चेक करे कि आप ब्लैक मनी अर्न कर रहे हो नहीं कर रहे. आज मान लो एक क्लाइंट मुझे यहाँ पे 1 लाख की फीस दे जाता है, मुझे तो अकाउंट में एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. मान लो एंट्री पास नहीं करूंगा तो मुझे इसके टैक्स नहीं भरना है. इट इज वेरी सिंपल टू सेव टैक्स. मुझे सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करूंगा और यहाँ पे अगर कैमरा लगेंगे तो उनको पता कैसे चलने वाला कि कोई क्लाइंट को मैंने सर्विस दी है और वो क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए हैं. इट इज वेरी सिंपल, बट द होल इनकम टैक्स इज फ्रेम्ड इन सच अ मैनर एंड विच इज इवॉल्व ड्यूरिंग टाइम कि गवर्नमेंट पैसा मिल रहा है उसको ट्रैक नहीं करती. जब मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो उसको ट्रैक कर रही है. कहीं ना कहीं मैं कमा रहा हूँ खर्च करने के लिए. आज अगर मैं मान लो ज्यादा कमा रहा हूँ तो शायद मैं ज्यादा घूमने जाऊंगा. पहले आईफोन नहीं लिया था, आज मैं शायद दुबई से आईफोन मंगवाऊंगा. So they are not going to track my income, they are going to track my expenses and then they are going to ask me कि आपने फॉरेन ट्रिप 1 लाख की थी, हमने इन्फॉर्मेशन ली है, बताओ कि 1 लाख कहाँ से, आपके पास 1 लाख के पैसे कहाँ से आए. So they will not ask me to show my income, they will ask me कि जो खर्चा कि उसके एंट्री बुक्स में दिखा. If I fail to do that, that will prove कि ये खर्चा मैंने अनअकाउंटेड इनकम में से किया. वैसे अगर मैं इनकम रिकॉर्ड नहीं करूँ तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकता. अगर मैंने कैश रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश का खर्च की वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा. तो लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप ये खर्चा दिखाओ. If I fail to show this खर्चा, that it will be deemed कि ये खर्चा मैंने ऐसी इनकम में से किया जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी बुक्स में. ऑल दिस सेक्शन, ये जो रेड, सर्वे, सर्च जो भी होता है उसमें वो लोग खर्चा ही ढूंढते, इनकम कोई नहीं ढूंढते. बट सी यू सेइंग कि जो कैश आ रहा है वो अनअकाउंटेड कैश है, तो आप अनअकाउंटेड भी तो लोग खर्चा करते हैं. हाँ, तो प्रूव हो गया ना कि ये खर्चा अनअकाउंटेड किया. मैंने अगर कोई फॉरेन बिकॉज वी आपको क्वेश्चन और एलाबोरेट कर. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने बोला कि दे डोंट हैव सर्विलेंस ऑन यू, कि अगर किसी ने आज आपको अगर 1 लाख रुपए दे दिए तो आप उस पर जो आई मीन ये बस मेरा जनरल डाउट है इसको. तो अगर जैसे आपके पास 1 लाख रुपीज है विच इज नॉट अकाउंटेड इनटू योर बुक्स, दैट मीन्स आपके पास 1 लाख सरप्लस मनी है विच यू कैन स्पेंड विच शुडंट गो इनटू एनी बुक्स. यस. So I cannot deposit this 1 lakh into my bank account because हाँ, तो आप उससे अनअकाउंटेड खर्चा तो कर ही सकते हो ना. आप उससे अगर किसी होटल में जाके खाना खाओगे तो उस पे आपको थोड़ी उनका एक्सपेंडिचर दिखेगा. तो अब वो होटल में जाऊंगा तो मैं डेबिट कार्ड से वापस पे करूंगा तो प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने कैश में पेमेंट करी फिर वो आपकी उस पर वापस नहीं आता. तो वही प्रॉब्लम है कि वी एज एन इंडियन आर वेरी इमोशनल पीपल. मैंने जितने सर्च में गया हूँ, आप जैसे कि वो लॉजिक बराबर है. खर्चा ऐसी चीजों पे करो उसका जिसका आपको वैसे भी पर्सनल खर्चा होगा जिसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला. तो बट मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि जैसे एक सर्च में मैं गया था तो ड्रॉवर में से वो इजिप्ट के पिरामिड की टिकट मिली. वो टिकट सिर्फ 10 रुपए की थी, बट
क्योंकि सब वो मेमोरीज के लिए रखते हैं, फोटो रखते हैं। हाँ, हाँ। नाउ वी कैन नॉट गो टू इजिप्ट विदाउट अ फ्लाइट, तो दे आस्क मी कि चलते तो जा नहीं सकते, फ्लाइट का खर्चा कहाँ है? बैंक से कि खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, दैट मींस दैट खर्चा इज देयर फ्रॉम एन अकाउंट, तो वो ऐड कर दिया। होटल में कहाँ पे रुके, तो होटल का खर्चा दिखाओ। सेम थिंग हैपेंस फॉर मैरिज। क्या मैरिज का एक मान लो इन्वेस्टमेंट कार्ड मिल गया, मैरिज का खर्चा क्या या फिर लिस्ट मिल गया, एक 1000 जन आए थे। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो भी इनकम होती है मैरिज में यूज करते हैं। इफ आई वुड हैव डन दिस मैरिज एक्सपेंस फ्रॉम माय इनकम, एक्चुअल इनकम, तो मुझे वैसे भी खर्चा नहीं मिलता, बिकॉज ये खर्चा बिजनेस नेचर का नहीं। अगर मान लो मैं चेक से हर एक कैटरर को चेक से पेमेंट किया, आई कैन नॉट क्लेम दिस एक्सपेंस टू रिड्यूस माय टैक्स, बिकॉज दैट इज अ पर्सनल नेचर का, इससे मेरा बिजनेस का सेल्स नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए लोगों का फंडा ये होता है कि जैसे आप एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर से इनकी मैरिजेस है या घूमने जा रहे हो, तो उसमें आप अनअकाउंटेड मनी यूज करो। The problem lies we must try to know the income is trying to track this unaccounted expenses, and then we are trying to link it with the unaccounted income. And this is a good fund ultimately. So this is a simple tax slab which I would say. So this is progressive in nature, and you just need to understand कि अगर 11 लाख की इनकम है तो ऐसा नहीं कि 11 लाख पे पूरा 30% बढ़ता है, ये स्लैब वाइज ही बढ़ता है। 2.5 लाख तक 600, 2.5 से 5 लाख तक 75,000। So it is not a tax rate whereby you say कि 10 लाख होगा तो less than 30%, और 10 लाख और 1 रुपये होगा तो पूरा 30%. You get the advantage of the progressive rates. So an example which I think will provide this slide to download to the as far as tax order requirement is concerned, at present simple है, 8% दिखाना है तो 2 करोड़ का कोई प्रॉब्लम नहीं। 8% से कम दिखाना चाहते हो तो आपका टर्नओवर मान लो 50 लाख होगा, लेकिन आप 8% से कम दिखाना चाहते हो तो आपको सीएस ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू डू द ऑडिट। तो आप 8% से कम दिखाना चाहते हो तो सीए के पास जाओ, और एल्स इफ यू आर नॉट डूइंग 4480, देन द जनरल लिमिट इज 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू द टैक्स ऑडिट। प्रोफेशन में 25 लाख की लिमिट है, इफ यू आर इन द प्रोफेशन है 25 लाख से ज्यादा आपकी रिसीव्स है, यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑडिट। And there is something called TDS. So we have TDS में आपको जनरल डाउट, TDS में जाओ अगर क्या है ना, सिर्फ बिजनेस में काफी वो स्टैंडर्ड पूरे ऐसा लगता है कि हम गवर्नमेंट के TDS काटने में लगे हुए हैं। लिमिट क्या जो आई थिंक यूनिवर्सिटी का हो रहा है, कोई कंपनी 30,000 कोई 180 होता है। कोई आपका TDS काट रहा है उसकी बात कर रहे हो या सर ये TDS का फंडा क्या है गवर्नमेंट? और कोई डाउट TDS के रिलेटेड है तो इससे पहला ये कि आपको कोई इनकम हो रही है उसमें कोई TDS काट रहा है, पहले सेपरेट एस्पेक्ट। और दूसरा ये कि मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ उसके बाद मुझे TDS काटना, दैट इज सेपरेट। एंड तो एक बार फंडा समझते, फंडा से वैसा है कि आज मैंने मान लो यहाँ पे कोई इंटीरियर का काम कर रहा है, which is business expenditure for me because it is related to my office. तो मान लो मैंने यहाँ पे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करा है, टीम वर्क वाला लोगो सब का कुछ नया नया किया, तो मैं उसको 1 लाख का फीस पे कर रहा हूँ। मैं तो खर्चा ले लूंगा, मेरी जो भी इनकम है उसमें से माइनस कर दूंगा, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो वो क्या गारंटी कि वो इनकम दिखा है नहीं दिखा। आई एम टेकिंग अ बेनिफिट ऑफ दिस खर्चा। मान लो एज अ सॉफ्टवेयर से आनंद चार्जेस 50,000 फॉर मी, आई एम पेइंग 50,000 और उसका मैं डिडक्शन ले रहा हूँ, मेरी इनकम उतनी कम हो जाएगी, उतना टैक्स भी कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द गारंटी कि वो उसके ऊपर टैक्स भरेगा नहीं भरेगा। तो उसके लिए वो चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के लिए ऐसा बोला, रेट हैज नो लॉजिक एज सच, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं, बस ये बोला कि सॉफ्टवेयर वाले को पेमेंट दो, उसको 10% काट के पेमेंट करने का और उसका पैन गवर्नमेंट को दे देने का। सो इफ आई वांट टू क्लेम एक्सपेंस ऑफ 50,000 नाउ, if I will not deduct 10,000 5,000 as TDS, then I cannot claim this expenditure. तो मुझे एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए मुझे TDS काटने का कोई शौक नहीं, उसको भी कोई मजा नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं नहीं काटूंगा तो मेरा खर्चा डिसला हो जाएगा। एंड तो जो भी मैं खर्चा करता हूँ, इफ इट इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेचर, इफ इट इज ऑफ इन द काइंड ऑफ ब्रोकरेज, इफ इट इज अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट, मान लो मैंने लोन दिया मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, उसको मैं ब्याज चुका हूँ, तो सभी को मुझे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा और TDS का रिटर्न करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं गवर्नमेंट को बताता हूँ कि मैंने इतने लोगों का TDS डिडक्ट किया है, जो आपको पे भी कर दिया और उसका पैन नंबर है। सो नाउ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर विल चेक कि अगर मैंने वो आर्किटेक्ट को 1 लाख पेमेंट किया तो क्या आर्किटेक्ट ने
1 लाख पे टैक्स भरा है, वो टैक्स उसका स्लैब वाइज ही आएगा। देखो वो बात समझो, मेजर प्रॉब्लम काफी लोगों के टीडीएस मान लो मैंने 10% काटा है, जैसे मीन कि आनंद हैज टू पे 10% टैक्स, ही हैज टू पे टैक्स एज पर दिस स्लैब ओनली। और मुझे तो डिडक्ट कर पता भी नहीं, आई कैन नॉट आस्क हिम कि आनंद तेरी इनकम 2 करोड़ या 2 लाख है, so then he knows he will be paying tax according to this, he would simply be getting a credit of this 10%, तो उसका जो भी टैक्स आ रहा है उसमें मैंने जो 5,000 डिडक्ट किया उसको वो लेस मिल जाएगा। एंड नाउ गवर्नमेंट इज वेरी ऑनलाइन सिस्टम, 26 ईयर्स के फॉर्म आता है, उसमें आपके जितने भी टीडीएस डिडक्ट किए पूरे इंडिया में जिसने भी डिडक्ट किए होंगे आपको दिखता है। अगर आपको पता भी नहीं होता तो लॉग इन टू दिस इनकम टैक्स वेबसाइट एंड यू गेट टू नो, या फिर आप मेजर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कैश केसेस भी चल रहा है तो यू फील कि जो मिला है वो बहुत है बस वो इनकम दे दी, बट किसी ने डिडक्ट सामने कॉर्पोरेट है तो उसने आपको टीडीएस डिडक्ट करके दिया होगा। तो सर टीडीएस फिर आप पे करते हो या सो सिंपल वापस से आते हैं, मुझे खर्चे का बेनिफिट लेना है, खर्चे का बेनिफिट गवर्नमेंट ने सिर्फ एक मशीनरी प्रोविजन डाल दिया, तो जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज की गई थी कि सर ये कैसा रूल है, गवर्नमेंट का काम है कि मैंने आनंद को पेमेंट किया तो उसको टैक्स भरे नहीं करे, मैं बीच में पड़ूं, but then the constitution validity was upheld because many other countries also have the same rule, so मुझे खर्चा क्लेम करना है मेरे बिजनेस में से तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं डिडक्ट नहीं करूंगा तो so I have to, when I'm making, he will raise bill to me, say I'm a businessman, he is providing me service, so limit जो सर आप पूछ रहे थे मेजरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, it would be a nature of प्रोफेशनल, तो 30,000 की लिमिट होती है, तो साल में 30,000 से साल में नॉट ऑफ इनवॉइस वाइज, तो साल में 30,000 से ज्यादा पे अगर वो मुझे बिलिंग करने वाला है तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। सिंगल इनकम सर ये is more than 30,000 then टोटल इनवॉइस बिलिंग total 70,000 then नहीं वो आप बोले वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नहीं कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं प्रोफेशनल सर्विस प्रोफेशनल में ओनली 30,000 है पूरे साल में और कुछ 94C 30 जी पर्सन इज 10%। no matter what happens, कुछ भी हो जाए the TDS percentage will always be 10%. No, for software I'm saying. Okay, so different professions have a Contract different. is 1%. Sorry. Say if I'm making an advertisement contract with someone and I'm paying some advertisement expenses, I need to deduct 1%. So basically every profession has a different type of a TDS. No, it is not dependent on my business. Say, मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, अगर मैं जिसको पैसे दूंगा अलग अलग लोगों के अलग अलग depend on the nature of payment. तो all of them will have no matter what, अगर मैंने आज for example IT में 10% है, अगर मेरी इनवॉइस for example 100 रुपए और मेरी इनवॉइस 100 करोड़ की हो, मैं the percentage will always be the same. Sorry, उनकी इनवॉइस 100 रुपए या 100 करोड़ की हो, the amount of TDS, the percentage of TDS will stay the same. Depending on the nature of payment. So it is as a businessman, it might be जितने भी खर्चा, if it is falling under the nature of payment which is described under this chapter of TDS, particular interest होगा, मैंने मेरे रिलेटिव से लोन लिया होगा, तो उसके ऊपर अगर 10,000 की लिमिट है, 10,000 से कम होगा तो नो TDS, 10,000 ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना, पर्टिकुलर पर्सन होगा, दिस लिमिट इज पर्सन वाइज, तो मैं 3 सॉफ्टवेयर डेवलपर से 20-20 हज़ार काम करवा रहा हूँ तो चलेगा, किसी के ऊपर TDS नहीं डिडक्ट करना। सर्विस टैक्स पे नहीं, सर्विस चार्ज पे लगे। मैंने बिलिंग 35,000 पे किया, मैंने एक प्रोडक्ट परचेज की उसको मैंने सेल किया 5,000 रुपीज मैंने एज ए मेरा कंसल्टिंग चार्ज मैंने किया, टोटल बिल हुआ 35,000, तो 35,000 में वो 10% 30,000 में आपकी सर्विसेज क्या है? हाँ तो मैं 30,000 का प्रोडक्ट रहेगा 5,000 सेल परचेस पे नहीं, सेल परचेज में नहीं लगता, पर अगेन फ्रॉम दिस ईयर दे हैव स्टार्टेड कि 2 लाख से ज्यादा आप कैश सेल करोगे ना तो लगेगा, दैट इज अगेन सेपरेट फ्रॉम दैट इज मेजरली टू मतलब वैल्यूअर्स के लिए जनरली या दैट इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, तो बट मेजरली खर्चे पर सेल परचेस में नहीं लगेगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन आप मान लो जॉब वर्क कर रहे हो तो आपका तो सेल्स पूरा का पूरा जॉब वर्क है, प्रोफेशनल सर्विस है, दैट इज कैन सर्विस है तो 10%, अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो 1%। अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ तो उसमें तो बराबर ऑटोमेटिकली टैक्स है, प्रोडक्ट उसमें टैक्स उसको टीडीएस तो आएगी, हां टीडीएस डिडक्ट नहीं करता, इट इज मेजरली इंटरेस्ट समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट समझ लो, प्रोफेशनल फीस समझ
पे ब्रोकरेज समझो, किसी को कमीशन दे रहा, वो कमीशन पे खरीदी कभी नहीं करता। आप कोई प्रॉपर्टी बाई करो तो उसके ऊपर 1% 20 खर्चा आएगा। तो इट इज मेजरली जो टैक्स मैंने खर्चा किया सामने वाले ने इनकम दिखाई होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को उस पर देखो एक बार ये रूल सेट हो जाए तो उसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप कितना भी देखो, मैं कितना भी खर्चा कर दूँ, मान लो यहाँ पे आर्किटेक्ट को 1 लाख देने की जरूरत नहीं थी, काम सिर्फ 10,000 का था, फिर भी मैंने 1 लाख पे कर दिया, जितना मैं खर्चा दे रहा हूँ उतना हमको टैक्स माफ से मिल रहा है। So as such, then there is not an issue. So इसलिए वैसे ही प्रोविजन अच्छा है, but then there are lot of cases जहाँ पे 1% को भूल के डिडक्ट करना। मान लो मेरा 1 करोड़ का खर्चा मैंने पर्टिकुलर टेक्सटाइल में होता है कि डाइंग करवाने के लिए दिया, 1 करोड़ का बिल था, मैंने 1 करोड़ पे 1 लाख डिडक्ट करना भूल गया, so whole of my 1 crore is disallowed. Disallowed in the sense कि मुझे खर्चा डिडक्शन के लिए नहीं मिलेगा, उतनी मेरी इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। That doesn't go into your company expenses. Yeah, so automatically my income would increase to that extent कि मैंने 2.5 करोड़ की रिसीट से उसमें 1 करोड़ का खर्चा है वो नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली माय इनकम विल इंक्रीज। So you have to end up paying the 30% of that. 30 lakhs. So and so this is a fund which is going from 2004, and you need to add recently majorly our role is fighting cases against the government in courts. So there are 3 levels of court in income tax, and tribunal is the highest level of court. So generally in Surat we are known in a sense कि around Surat के 65% cases जो higher authority पे जाता है उसमें हम फाइट करते हैं, and in the last 3 months we were fighting on this TDS issue, and because of which आप ये बजट देखोगे तो बजट में अब ऐसा है कि सिर्फ 30% खर्चे भी चला होगा। So the first case which I found around 1 year back, so I raised an argument to the government कि सर एक तरीके से TDS में मैं मानता हूँ कि मशीनरी प्रोविजन है, बट अल्टीमेटली हम आपके लिए एजेंसी जैसे काम कर रहे हैं। साइड में कि सर अगर ये सेम काम अगर मैं वोडाफोन या मतलब आइडिया वालों के लिए करता कि वोडाफोन और आइडिया के कस्टमर के पैसे में घर घर जाके आप तक पहुंचा था, मुझे कलेक्शन एजेंट की तरह कलेक्शन फी दे देंगे, तो टीडीएस में अल्टीमेटली नहीं कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए कस्टमर कौन हो गए, जनरल पब्लिक जिससे टैक्स वसूल करना है, तो मैं आपको टैक्स वसूल करके जल्दी दे रहा हूँ कि वो तो अपना रिटर्न 1 साल के बाद भरेगा, टीडीएस तो मैं अभी डिडक्ट कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली आई एम कलेक्टिंग एडवांस टैक्स फ्रॉम यू। तो एक तो आपको इंसेंटिव देना चाहिए कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा टीडीएस डिडक्ट करके थे उनको गवर्नमेंट 1% रीइंबर्स करे, so that is 1% is a normal rate for any collection agency. मैं तो योता पे नहीं रहे और उल्टा 30 लाख टैक्स मांग रहे हैं, there are lot of penalty for that. इनकम टैक्स में और कोई प्रोविजन में फेल नहीं है, टीडीएस डिडक्ट करके अगर आप पेमेंट नहीं करते तो 3 से 7 साल की जेल। तो लाइक एंड गवर्नमेंट से इज अ मशीनरी प्रोविजन में उसमें लॉजिक इसमें नहीं आता है, मशीन लिखा है तो करना है, लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है। So now things have become milder last 2-3 years, but still at your level when you don't want to fight to that high court, तो आपको उतना तो करना पड़ेगा जो डिडक्ट करना है। So it is only about system, once you maintain that system, आप थोड़ा बहुत documentation में करें, तो you have people who would outsource that for even who do that work for you. So ultimately last to be about service tax, another model is to take GST. GST is very premature state. So the logic is good, but still I don't think as a session it is required at this stage. Brief outlook I would say, at present there is a lot of cascading effect of different taxes. Cascading effect मतलब आज अगर मैं मेरे परचेज पे वैट पे कर रहा हूँ और मान लो मेरे सेल पे वैट नहीं लगता है, एक्साइज लगता है, और कोई और वो एक्साइज बैन करेगा वो जब उसकी सर्विसेज, तो देयर आर डिफरेंट इंटरमीडिएट। आज एक प्रोडक्ट से यानी कि चिप से लेके क्लोथ तक बनती है तो उसमें अलग अलग टैक्स पे होता है, ऑक्ट्रॉय मान लो। So government is trying to merge this VAT, CST. When I do interest taxes, there is something called CST. There is something called octroi. There is something called entry tax. There is something called excise. इन सबको merge करके GST टैक्स ला रहे हैं। At present problem ये है कि VAT स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और excise सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। So if my sales on sales if I have to pay excise and on inputs I am paying VAT, मुझे दोनों का क्रेडिट नहीं मिलता। So when there is a simple GST, तो गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि सब कुछ पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाए और वो फिर हर स्टेट गवर्नमेंट को उसके हिसाब से बांटे। तो उसमें मे बी गुजरात वुड बी एट अ लॉस, शायद अभी तक हम शायद जीएसटी नहीं था और वैट था, तो वैट का पैसा गवर्नमेंट को गुजरात गवर्नमेंट को मिलता था। अब जीएसटी में क्या होगा, वैट का पैसा स्टेट वुड लूज, द होल जीएसटी वुड बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें से मान लो 10% या 5% गुजरात को देंगे, दूसरा जितना कम मिलेगा। सो दैट इज द रीजन स्टेट्स आर इन प्रॉब्लम। गोवा कहता है कि हमारे लोग तो ज्यादा कमा रहे हैं,
तो वैट तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन जीएसटी आएगा तो आप पहले पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी नीड के हिसाब से, हर एक स्टेट में तो कम पैसा मिलेगा. दैट इज द रीजन द स्टेट्स वर नॉट दैट एग्रीइंग टू गो विद दिस. बट एज फार एज कंज्यूमर इज कंसर्न, आई फील इट वुड बी श्योरली बेनिफिशियल. तो उसमें क्या होगा, मुझे पता है कि आज जो मैं परचेस कर रहा हूँ उससे क्रेडिट मिल रहा है. तो मैंने परचेस किया 100 रुपीज में, वीडियो पर अपलोड किया चॉकलेट वाला एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा था, एडवर्टाइज से आई एम पेइंग 10 रुपीज बैक. मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, एनी इंडस्ट्री वुड डू वैल्यू एडिशन. से मैंने वैल्यू एडिशन किया, इसके ऊपर 20 रुपए का एंड आई एम सेलिंग दिस फॉर 130. तो 130 के ऊपर मैं जो कस्टमर से चार्ज करूंगा, से 130 के ऊपर मैं चार्ज कर रहा हूँ 30 रुपीज. So I am going to pay to the government only 20. 30 रुपीज मैंने कलेक्ट किया, मेरे इनपुट पे मैंने 10 रुपीज पे किया, तो गवर्नमेंट को मुझे नेट फिगर ही देना एंड दैट विल बी फॉर ऑल द लेवल्स. तो जीएसटी का रेट ज्यादा होगा, लेकिन मैंने जो भी परचेस के ऊपर जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली आई एंड अप सामने वाले से ज्यादा कलेक्ट करूंगा, बट आई विल बी एंडिंग अप पेइंग लेसर टैक्स. तो ओवरऑल इकोनॉमी को ये फायदा होगा कि टैक्स मनी थोड़ा कम हो जाएगा. तो एट प्रेजेंट मैं क्या करता हूँ, मुझे इसकी क्रेडिट नहीं मिल रही वैसे भी, इसलिए मैं कहता हूँ सर इसको अनअकाउंटेड परचेस कर. अब मैं क्या करूँगा, मैं सामने वाले को बोलूँगा नहीं मुझे बिल दे. Because now I know that whatever I am going to collect, I am going to get a deduction of this time. So automatically I would tell to my vendor कि नहीं मुझे तो बिल वाला इजी करना है, मुझे बिल चाहिए, तो ही मैं बिल के ऊपर जो भी मैं वैट पे कर रहा हूँ जीएसटी पे कर रहा हूँ उसका मुझे क्रेडिट मिलने वाला है. सो पीपल वुड डिमांड मोर एंड मोर फॉर द बिल. तो उसके इकोनॉमिक एक सिंपलेस्ट फ्लो अच्छा रहेगा सामान. So but I don't believe the fact कि there are a lot of SMSs and circulation कि ये कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, ये कम होगी. I think it is very premature stage. हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्योंकि एवरीथिंग वर्क्स इन इक्विलिब्रियम. आज मान लो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी, जब मान लो जीएसटी का रेट 30 से 15% कर देती है, तो प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस में उसकी प्राइस बढ़ा दे. किसी ना किसी को तो हम कर रहे हैं. मान लो आज ये टूथपेस्ट 50 रुपीज में आ रही है, मान लो टैक्स कम करके 30 रुपीज आ जाती है, तो दैट बिजनेसमैन तो कंपनी वुड थिंक कि नहीं यार इतना सारा फायदा लोगों को तो क्यों पहुंचा है, तो हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं, हम प्रॉफिट ज्यादा कमाते हैं. तो अगेन इट इज नॉट अ गुड मेथड कि गवर्नमेंट को बोले कि टैक्स आप कम कर दो. टैक्स कम करेंगे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो कंपनी विल डिसाइड. So if government is going to give a lot of benefit in GST, then company will increase their selling price in a manner कि ultimately consumer को सही पड़ने वाला है. So I don't think बहुत ज़्यादा analysis करने की जरूरत है, but it would surely be effective and simplest way I can tell. I agree that it is one of the largest economic reforms of all time. So जैसे implement होता है वैसे everyone should adhere to the जर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप करे तो मानो कि 15 लाख का So what we'll do is I can just end my presentation. My last slide there will take 2-3 questions. So lastly, talk about service tax. You require to take a registration. You need to require to take a service tax registration once you cross 9 lakh. You are exempted from service tax till you achieve a turnover of 10 lakh. This is. अब यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, 10 लाख की लिमिट है. सो 10 लाख तक आप सर्विस सेक्टर के अंदर माने जाओगे दैट यू आर स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर. तो एवरी ईयर आपका 10 लाख से कम टर्नओवर है या रिसिप्ट से तो कोई सर्विसेज के नंबर लेने की जरूरत नहीं है. आपका 10 लाख से जैसे टर्नओवर बढ़ता है तो आपको पुराने कस्टमर्स को कॉल करके सर्विस टैक्स वसूल नहीं करना है. तो नए कस्टमर 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस उस साल करोगे और नेक्स्ट ईयर से ऑटोमेटिकली फर्स्ट बिल से आपको सर्विसेज कलेक्ट करने लगना है. बट first year when you cross 10 lakh, you are only going to pay service tax from the amount in excess of 10 lakh. हाँ लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 9 लाख क्रॉस करते दे देते. तो 9 लाख क्रॉस किया रजिस्ट्रेशन नंबर किया, मान लो आपका 10 लाख नहीं हुआ तो you file a nil return. You are required to take a registration number because the penalty for registration is 100 rupees per day. Now they have a maximum cap अभी. तो लास्ट ईयर तक तो मेरे क्लाइंट ने सर रजिस्ट्रेशन टैक्स तो पूरा भर दिया था, रजिस्ट्रेशन लेट होने की वजह से 2 लाख 3 लाख पर्टिकुलर इन केस ऑफ बिल्डर. So like 100 rupees per day, फिर इसमें 200 रुपया करके. But this government is very reason. अगर मैं मेरे खुद की प्रैक्टिस की बात करूँ तो लास्ट 3-4 मंथ में जो रिफॉर्म्स आए, I would say कि जो government has withdrawn around more than 15,000 cases which was in favor of the assets. जब ऑलरेडी मान लो 3-4 लेवल होते हैं तो यहाँ पे एक लेवल पे मैं जीत चुका हूँ, फिर गवर्नमेंट मेरे अगेंस्ट आगे गई है. तो मोदी गवर्नमेंट
simply give a circular to all the chief commissioners कि अगर 10 लाख से कम की disputed cases है उन सब में डिपार्टमेंट अपील विड्रॉ कर दे. So I can fight ahead even if I have a dispute of 1 rupee. मुझे लगता है कि 1 रुपया भी टैक्स में गलत भर रहा हूँ तो मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि 10 लाख की टैक्स चोरी हुई है या उससे कम हुई तो उनको वो आगे नहीं जा सकता. So that was and they applied retrospectively. 20 साल से इतने केसेस बाकी थे उन सबको वापस नहीं किया. And I think government would have made a loss of around more than 20,000 crore. वो एक ही दिन एक ही सर्कुलर के थ्रू, so they are very much keen in reducing the litigation. So सेम में जीएसटी सर्विस टैक्स की बात करो, लॉट ऑफ गुड रिफॉर्म्स have been come तो शायद आम लोग तक या स्टार्टअप तक आते भी नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल वी फील दैट गुड डिसीजंस आर बीइंग. So that is these are the two forms which we require for service registration. So I think we can take 2 to 3 questions. Yeah, please. सर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे अभी उसका 15 लाख का प्रॉफिट है, अभी वो 2 डायरेक्टर है, एक एम्प्लॉई है, तो उसका जो रिटर्न फाइल करना होगा मतलब टैक्स, तो 30% रहेगा प्रॉफिट टैक्स. Yes. Firm and companies have to pay tax at the rate of 30%. And companies, so again, I observe कि जनरली पता है अभी स्टार्टअप जो भी मिलने आ रहे हैं मुझे भी कंसल्टेशन में, दे ऑलवेज हैव एन अप्रोच की कंपनी बनाने. आई डोंट नो द रीजन व्हाई, बट क्या बेनिफिट है कंपनी बनाने में वो मैं समझना चाहता हूँ आपसे. कि दिखने में चलो प्राइवेट लिमिटेड अच्छा लगता है, तो व्हाई डू यू वांट टू पे टैक्स ऑफ 30% प्लस whenever you are going to distribute dividend to your shareholders, again there will be a tax of 15% plus surcharge will amount to 48% around on your profit. तो आप 100 रुपए कमाओगे उसमें 48 रुपीज गवर्नमेंट को देना है. So if you have some good, yes, there are lot of positive points for company. Now I feel as far as scalability is concerned या investors is concerned, कंपनी होगी तो ही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे. बट व्हेन यू हैव अ small prototype at present, I don't think you should go for a company and increase your compliance cost. So any other questions? तो सर उसमें जो डायरेक्टर का रहेगा सैलरी, तो क्या डिसाइड कोई उसका लेवल है कितनी सैलरी आप दे सकते हैं? For private limited companies, there is no level of salary. You can give as much salary as you wish under the Companies Act. For public limited companies, the limit is 10% of your 11% of your profit. So I cannot Reliance Mukesh Ambani को 11% से ज़्यादा नहीं दे सकता profit का, considering all the directors, all the whole time directors together. So it is only for public limited company. Private में ऐसा मानते हैं कि खुद का ही पैसा है, जनरली क्लोज नेटवर्क का ही है तो उनको डिसाइड करने दो. बट इनकम टैक्स एंगल से मैंने देखा है कि जब 60% से ज़्यादा प्रॉफिट आप डायरेक्टर सैलरी की तरफ देते हो, दे टेंड टू डिसअलाउ एंड दे हैव राइट टू डू सो. इनकम टैक्स में आप 7 लाख दोगे तो 1 लाख का खर्चा ऐसे एब्रप्टली डिसअलाउ कर देंगे. 10 लाख का प्रॉफिट आप 6 लाख से ज़्यादा दे रहे हो, या फिर वो लोग कुछ एग्जाम्पल कोट करेंगे कि आपके जैसे दूसरी 3 कंपनी है, वो लोग अपने डायरेक्टर को इतना ही पे करे तो आपको नहीं ज़्यादा पे करे. तो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब पैसे आपसे वापस नहीं ले लेंगे, लेकिन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स उसका डिडक्शन नहीं देंगे. तो उसको जो पैसा मिल रहा है डायरेक्टर को, उसको पर्सनल फाइलिंग करना होगा. हाँ, कंपनी बेस्ड डायरेक्टर सैलरी, तो नॉर्मली और कोई सैलरी पर्सन जैसे रिटर्न करते हैं वैसे उसे करना अंडर द हेड ऑफ सैलरी. So any other questions? Sir, we are purchasing seats. That is without bill. No bills, nothing. But we have to send on tax report, for which we have to pay the tax. Wait filing. So what is the accounting entry for that? सर फर्स्ट ऑफ मतलब आप परचेस तो रिकॉर्ड करते ही होंगे ना. नहीं, कोई बिल नहीं, कुछ नहीं, ट्रांसपोर्ट में माल आ जाएगा, ले लेना. नो बिल, नथिंग. बट सेल करना है, देन टैक्स इनवॉइस ऑनलाइन, डायरेक्ट पेटीएम, स्नैपडील एंड दोस थिंग्स. सो देयर इज अ टैक्स इनवॉइस एंड 3 नंबर कंपलसरी. उसके लिए क्या करेंगे? यू हैव टू गेट बिल्स. और जनरली फिर मार्केट में शायद ऐसा चलता होगा कि बिल फिर आप और कोई नाम का ले लेते हो. तो डायरेक्टली फार्म पीपल आर प्रोवाइडिंग द सीट्स. मैंने समझा जनरली आई थिंक योर सीए यही सलाह देगा, या जो भी आप कभी इसका मैच करो यही बोलेगा कि आप एटलीस्ट कहीं और से बिल ले लो, किसी और का बिल ले लो. तो उसमें पूरे इंडिया में नहीं तो फिर आप बुक सारी परचेज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो सेल कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे? आपके स्टॉक में एंट्री नहीं आएगी. उसके लिए ऐसा कुछ है कि जो मुझे टैक्स मिल रहा है, मैं 50 की चीज ला रहा हूँ, उसको मैं बेच रहा हूँ, तो 100 पे मुझे अगर 5% देना है टैक्स, मैं 5 रुपये भरूँ. नहीं फिर आपको अगर 40 रेडी में कवर होता है तो उसका एक्टिवेशन में ज़्यादा अच्छा है. 40 रेडी के ऊपर देन वी हैव टू गेट बिल सर. क्योंकि those seats are imported from the Peru and So how you are making a payment for this?
directly from my already. तो फिर आपको सेल भी अनअकाउंटेड ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो कैसे भी करके बिल तो देना ही है, जबकि परचेस हो रहा है तो माल आ रहा है पेरोल से हैदराबाद टू इंडिया अलग अलग So जगह that is where I feel GST would regularize this sort of market. Till then, you will have to take bill from somewhere. That is what happens in market. from April to till date in August we have sold a lot of products. Now the accounting issue is coming. So you will have to consider because this issue, परचेज अनअकाउंटेड होगा, सेल अनअकाउंटेड होगा तो ठीक है, बस उतना डर है कि इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको सर्वे और कुछ होगा। अकाउंट्स में तो टाइप ऑफ हो जाता है, बट अकाउंट्स में आपको सेल रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा और आप परचेज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो स्टॉक कैसे चलेगा? स्टॉक ही नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा, विदाउट फंड आपकी न्यूज़ है, मतलब आपका स्टॉक ही नेगेटिव हो बिल जाएगा। देते हैं विदाउट टैक्स इनवॉइस देते तो भी चलेगा, कैश पर नहीं, कैश पर टैक्स इनवॉइस मिल रहा है। I believe, मतलब हमारा ये प्रैक्टिस नहीं है, बट I believe there are a lot of people in market who would charge 1% give you a bill. नहीं ऐसा एक आगे हुआ था एक सप्लायर का, तो उसने बिल तो दे दिया 1% या फिर 0.5% लेके, उसने अकाउंट नहीं किया, उसकी वजह से स्क्रूटिनी दूसरा सामने आता। So then you need to approach us कि generally the best judgment मैं ला सकता हूँ ये केस में वो 12.5% का ला सकता है। So there are a lot of litigation which will go on and on, but ultimately department would say इनका कि ये जो परचेज आपने गलत किया उस पर 12.5% डिसअलाउ करते हैं, बाकी का 87.5 मान लेते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव दोस ट्रांसपोर्ट प्रूफ एटलीस्ट। आपने बिजनेस किया और माल आया वो प्रूव करना पड़ेगा, भले इनसे नहीं किसी और से आया। तो जनरली द बेस्ट जजमेंट विच आई कुड फाइंड इज 12.5, but the matter will go into litigation as far as income tax is concerned. So now I think sir, we can take other questions at the end of the event. Already we are out of time. So now I would again ask the question: how many of you are feeling lucky after attending this session? So can we have a big round of applause for मेरे को लगा सब ऊपर से क्या मेरे को। So this is the next part we are going to take. So you can read it out. BG Startup Summit. Okay. So what is BG Startup Summit is? You must have heard about the Vibrant Gujarat Summit which happens every year. Okay. In Jan or Feb. Okay. So what they have come out with is they are doing a startup summit which is specifically for startups itself. Okay. So that is happening on 21st and 22nd September. The website is bgstartup.com. Okay. We will go through the website very quickly. Okay. So this is the website. Okay. So the main funda of this event is they want to promote startups. Okay. So why they want to promote startups is Gujarat as an ecosystem is been lacking behind from other cities or other states in the country. Okay. So they are asking startups to come down and participate in the event called Grand Challenge. Okay. So the Grand Challenge will consist of two categories where a startup can take their application or pitch their application. So the two categories are water and food. So if you have an idea which is related to water or related to food, you can participate in the Grand Challenge. Okay. So there are another two categories which you have to go through. So you can apply for your startup and I think year one in year one. Okay, cool. The top man. Okay, then this is a different thing, so I will explain it afterwards. So there are two phases in which you can apply. First is ideation phase and the second is prototype phase. Okay. So in ideation phase, you just need to have an idea. Okay. You need to have an idea on paper. So you can upload that thing on their portal and you can participate in that phase. Second is prototype phase. In prototype phase, you have to necessarily have your idea. Secondly, you also have to have your ideas, website, application, or anything related to technology. Okay. So then they will expect your application. In both the cases, in ideation phase, the highest amount they would give you is 5 lakh rupees, and in the prototype phase, they will give you 25 lakh rupees. Okay. And if you do not have a startup catering to water or food, you can participate in this thing. Okay, so that is called coffee table book. So if you have a startup already running, already executing in the current scenario, so what you can do is you can participate in this, and if you are selected in the top 50 startups across Gujarat, you get the chance to meet the CM and you get the chance to interact with the CM. Okay, so that will charge you approx 1,000 rupees, and if you do not win, okay, so they have written applicants who are not selected will get access to the summit with this ticket. Okay, so if you are a student, you have to pay 500 rupees. If you are a delegate, you have to pay 1,000 rupees. If you are interested, you have to pay 2,500. But if you participate as a startup in this coffee book table, so if you are not selected in the top 50 list, you can already access all these things. Okay. So अगर आप एक startup हो, आपने apply किया, आप इसमें select नहीं हुए,
तो आप इवेंट अटेंड कर सकते हो 2 दिन, ठीक है, वो उसका कॉस्ट नहीं It would be लगेगा। converted into delegates. हाँ, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा डेलीगेट, ठीक है। So this is it, and if you go on spot तो आपको 2500 रुपये लगेगा, ठीक है। So this is the entire thing. If anybody has question, you can ask. Yeah, Business to business. business to business. So, any of you have attended the Chamber of Commerce का road show हुआ था last weekend? So हाँ, sir ने attend किया था। like because even we as a community want maximum participation from Surat, because in Ahmedabad I think every startup is going for this, because this is very positive point by the government. अभी तक जो हमें कहीं भी ग्रांट लेनी हो, एजुकेशन के लिए कोई ग्रांट लेनी हो, बिजनेस में कोई ग्रांट लेनी हो, वी हैव टू डू लॉट ऑफ पेपर वर्क. यहाँ पे लोग ग्रांट ही दे रहे हैं, बट इन अ वेरी सिंपल मैनर की कंपटीशन रखी, जो अच्छा स्टार्टअप है उसको वहाँ पे ग्रांट दे दिया एज अ प्राइज मनी. So government is reducing a lot of paperwork to this. I think Plus you it is also purely get by the government of Gujarat, totally. Each and every funding. Plus you also get chance to directly pitch to the investors, directly meet the investors. They also have exhibitions जिसमें अलग-अलग startup के exhibition होंगे वगैरह. So you can check the entire website and you can go through it. By B2B, I think Ankit भाई क्या बोल रहे थे, like they are trying to set up a platform that when you register, they will ask you कि आपको किन किन से मिलना है. You say कि मुझे गवर्नमेंट के ये ऑफिसर से मिलना है, मुझे ये स्टार्टअप के सीईओ से मिलना है, एंड दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि आपने जिन जिन लोगों से मिलना है उसमें से दे विल ट्राई, दे डोंट गिव कमिटमेंट, दे ट्राई कि आपके उनके साथ मीटिंग शेड्यूल कर सके. दे विल गेट अ ड्रॉप डाउन कि ये लोग, दिस आर द ऑप्शन विच यू हैव, एंड यू से मुझे इनसे मिलना है, देन दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड टेल यू कि आप 4 बजे इनको मिल सकते हैं इवेंट के दौरान. So that is one very good positive point, and they are also trying to link it with Uber. So government needs someone to कि एयरपोर्ट जाके सभी डेलीगेट्स को इवेंट तक लेके आए, and so they have come out with a very good idea. So if you are a startup and you feel कि ये इवेंट में मान लो कोई दिल्ली से कोई बहुत बड़ा आदमी अटेंड करने आने वाला है, गवर्नमेंट विल लिंक यू विद दैट पर्सन कि आप उनको एयरपोर्ट से उबर में पिकअप करने जाओगे और उनको इवेंट तक अच्छी तरह लाओगे. इसमें गाड़ी में आपको आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग के बारे में उसका जो बात करनी हो, यू वांट टू पिच योर आइडिया एग्जैक्टली, यू कैन डू इट इन द कैब. तो गवर्नमेंट का भी काम इजी हो जाएगा कि So they are simplifying the process. So what if once you sign up to the website, what they will ask you is कि what are the sessions you want to attend. So they have multiple options as well. Suppose 4 से 6 में उनके पास 3 सेशंस हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको तीनों अटेंड करना है, आप उसमें से एक अटेंड कर सकते हो. तो आप जब साइन अप करोगे तभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको क्या अटेंड करना है, किससे मिलना है, आपका पर्पस क्या है इवेंट में आने का, एंड दे विल मेक श्योर कि वो आपका पर्पस फुलफिल हो इवेंट खत्म होने के बाद. ठीक है, so that's it. And we as a community would love if there are a lot of applications from Surat, and if you have any queries or if you want any help to fill up the applications, we are always there for you. Okay, so this is why we took this topic. Yes. So this is the. So do you have any questions? How do we regarding the- contact you? What? How do I contact you if I ask you? So you can obviously contact on my telephone number, Facebook page, Twitter handle. Okay. So I will give you my number. So the next part is startup news. This we take every time. So we go through the news from. So Instagram goes the Snapchat way. So everybody would have known that Facebook was in 2-3 years back. Facebook wanted to acquire Snapchat, but Snapchat denied because Snapchat was feeling कि भाई मेरा तो business already इतना अच्छा है, मेरा ये इतना अच्छा है, मैं इनको नहीं देने वाला. तो अभी Facebook ने बहुत smart move किया कि उन्होंने अपने Instagram application में ही Snapchat का feature डाल दिया. Okay. So same feature is included now in Instagram. So Snapchat का थोड़ा लोचा है. Now Myntra everybody would have known Flipkart ने प्रोडक्ट है, Flipkart ने खरीदा हुआ. तो Flipkart ने एक जो ऋतिक रोशन का ब्रांड है HRX करके, वो भी एक फैशन ब्रांड है, तो उसके मैक्सिमम स्टेक्स उन्होंने बाय कर ली रिसेंटली. Next is okay. So this is a very good Grab Shack, an Indian based search engine from Mumbai. Okay, recently एक लॉन्च हुआ है. सबको पता है वो खोज करके गूगल का रेप्लिका बनाया, इंडियन गवर्नमेंट को यूज नहीं करता लेकिन ठीक है. तो ये एक प्राइवेट गूगल सर्च मतलब सर्च इंजन बनाया है बॉम्बे में. सो आप यू कैन गो एंड चेक इट आउट कैसा वो सर्च करता है, कैसा वो करता है. Okay, so that's it for the news. Now we go on to the community announcements part. So there we will take you through what we are doing, what we are planning, what we are doing in the recent times. Okay. So the first is this is the event calendar which we are doing. So
today we are here 6 p.m. Text origin. Next meetup is 15th August. Okay, on 15th August we are going to a cafe called Rangilu Cafe. Okay, so there the agenda is, the topic is कि how independent you feel in the ecosystem. So what does that mean is कि आपके पास आइडिया है, यू कम विद एन आइडिया, ओके, आप किसी आइडिया को लेके आते हो इकोसिस्टम में, वो इकोसिस्टम आपको कितने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। अब दो चीजें होती है कि एक में आइडिया लेके आया, मैं किसी के पास गया, उसको बोला नहीं तो आइडिया वर्केबल नहीं है, ऑलरेडी कॉपीड है, या फिर ऐसा ऐसा है, वर्कआउट नहीं होगा, तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इनफ कि भाई आपने अपने आइडिया को एग्जीक्यूशन लेवल तक ले गए, ठीक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग इन द एंटायर मीटअप, ओके। इवेंट नहीं होगा, वो डिस्कशन प्लेटफॉर्म होगा। Then we have the next fortnight meetup on 28th August, same venue. Cool. So obviously, if you want to write down, you can write it down, and you can attend the event. So there are other events which we are not a part of, but these are the events which are happening in school. So TEDx Dumas, आपको पता होगा TEDx का format, okay? So TEDx Dumas is happening on 28th August. So what you have to do is you have to go on their Facebook page or on the website. You have to fill a Google form, okay? Once you fill the Google form, they will select. You cannot directly buy the pass. You have to fill the Google form. They will select you, and then you can buy the pass. Okay. The pass is of rupees 1800. Then ISEC Global Village. So ISEC is a platform, youth platform, which is spread across the world. Okay. So what they do is they call people from across the countries. You can go meet them. You can interact with them. You can do everything what you want. Okay. So वो VR मॉल में हो रहा है, आज से स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट 2 दिन और चलेगा, ठीक है। तो उसका टाइमिंग सुबह 9 बजे। फिर पाठशाला एनजीओ, अगर आप 15 अगस्त में हमारी इवेंट में नहीं आए तो आपके पास ऑप्शन है पाठशाला, if you are a social worker, you can go meet students, you can enjoy with them, you can give them food, you can do whatever you want, okay. So ये 8:30 को है, वो एसयू है। Then this is what we are doing, okay. So हमने 2 महीने पहले we did a story which was into blogs, okay. We have written the stories of startup entrepreneurs from Surat and we published on our blog, okay. So वो एक story ऐसी हुई जो ऑनलाइन मीडिया से हमने पब्लिश की। अभी ये जो है वो हम लोग पूरा वीडियो बेस करने वाले हैं, ठीक है। So if you are an entrepreneur, मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपको बोलूँगा आप अपनी स्टोरी शेयर करो, उसको वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा और फिर उसको पोस्ट करूँगा, तो वो डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो लास्ट टाइम भी हमने 15 स्टोरीज पोस्ट की थी, इस बार भी हम 15 स्टोरीज पोस्ट करने वाले हैं जो एक वीडियो फॉर्म में होगी, ठीक है। So नीचे लिखा हुआ है, we are looking for a sponsor for our upcoming project Surat Startup Stories, that is a web series. Okay, so it would include 15 stories of minimum 2 minutes each. Please share references or contact us directly if you want. Cool. So if you have any references, a person who wants to sponsor this entire thing, you can contact us. The next part is Surat Startups Coffee Pitch. Okay, so this is a new thing which we have came out with. Mehul sir is surprised. Yes. So this is the post which we did yesterday. Yes. So this is the post we did yesterday. Meet team Surat Startups and Ankit Donors Surat from 4 p.m. today, and we would be enjoying donors blah 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 blah. So what you can do is we would be posting this randomly anytime. We feel कि भाई हमारी team को मिलना है कैसे, we will go out and chill. Okay. So what you can do is you can come with your idea, you can discuss with the entire team, and you can pitch directly. So फिर अगर आपका idea आपको अच्छा लगे तो you can work with it. Cool. फिर रैंडमली हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करते रहो, जब भी टाइम मिले फिर कम जॉइन दी टीम। सो इफ the people or the members who have been attending the event from last few times, उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी कि we are on the verge of getting an incubation center in Surat. So thank you sir. So we are in talks with SCAT college. So वहाँ पे हमारी बात हो रही है on the verge, so शायद next week तक हम फाइनलाइज कर देंगे, एक ऐसी स्पेस मिल जाएगी हमको जहाँ पे स्टार्टअप्स कैन गो एंड वर्क, जो जितना भी काम करना होगा, 24 आवर्स शायद नहीं होगा, लेकिन एक स्पेस हमको गारंटी हो जाएगी कि यहाँ पे स्टार्टअप्स आके काम कर सकते हैं। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। ऑल्सो यू मस्ट हैव रेड द पीपीटी, जो सर की मेहुल सर की पीपीटी थी, सो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा मेरे जैसे, ठीक है। So you can still go on to the Facebook page, हमारी website पे, you can find that document, you can find that PPT, you can go through it again and again and again and again until you understand it. And if you are still facing issues, you can contact directly Mehul sir कि भाई सर ये वाला point पे ये issue है, ठीक है। So every document or every PPT, every photos we have online, you can go through them anytime. Okay, so हमारे last sessions के भी जो PPT है सारे online आपको मिल जाएंगे. Okay, and this is what we do every
every weekend. So मैं हर बार ये बोलता हूँ लेकिन आउटरीच नहीं आ रही है, ठीक है. So ये जो है ना यहाँ पे लास्ट में ये स्टार्टअप का नाम लिखा हुआ है जो सूरत से ही, ठीक है. So what you have to do is वो ऊपर का नहीं पढ़ोगे चलेगा, सिर्फ इस पे जाके क्लिक करो एंड इफ यू फील कि वो स्टार्टअप वर्थ है आप लाइक करो, बेचारे में थोड़ी नेटवर्किंग मिल जाएगी, ठीक है. ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज कमेंट में अगर आपको कोई स्टार्टअप पता है कि भाई हमको नहीं पता स्टार्टअप, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज वो स्टार्टअप को टैग करो, हम उसको लाइक देंगे, या फिर लोगों को लगेगा कि भाई ये वाला अच्छा नहीं ये वाला अच्छा है तो उसको लाइक देंगे, ठीक है. अंडरस्टूड सबको? ओके, so that's it for this session. You can ask questions if you have any. कोई भी community के related या फिर session के related, session से तो बहुत सारे questions हो गए. किसी को कोई questions? Immediately we want to take the community to a good level, and I think Anand and his team have done a very good job in last 6 months. If you like Guru कभी शायद ये first event हो गया recently 2-3 event में आए होंगे. We started in I think September or October, and there have been regular sessions, and Anand and his team, Shalin है. There are 2-3 other people, so they are really working well to create something out of this community. So there is no, I think, monetary or financial objective, but they want अंदर हम networking में एक दूसरे को help करें. So anytime you can reach him for any sort of help for a startup, and he knows the right person to be approached. Even if he cannot help, he knows कि सूरत में ये person help कर सकता है, and I think that works a lot. So if you have any questions, if you have any startup ideas, if you have anything to discuss with us, if you don't have anything to discuss, then come to us and we can discuss something. Okay. So thanks a lot for the coming to the event, and we can end with the group photo. Okay. Also, we do not say goodbye. We say we will meet again. We will network outside the event. We can talk. We can discuss a lot of things. Okay. So please, we can stand and we can have a group photo. What exactly on time? What about the phone? Yes. What do you do? You can. Okay. कपड़े आगे लगा. कौन तू पढ़ रहा था? कैमरा है. So you can come in front as well. हम लोग भी बोलते नहीं, लेडीज बस करते हैं. बहुत खाली खाली लग रहा है. चलेगा नहीं चलेगा. You can stand. You can sit. Independent करते हैं. It's a smile. थोड़ा इन्फॉर्म. Thank you.